अपना वक्तव्य अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले, जिन माननीय सदस्यों के 377 के अधीन मामले स्वीकृत हुए हैं, वो कृपया अपने विषय को सभा पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आइटम नंबर 18, केंद्रीय बजट पर चर्चा। श्री मर्गनी भरत जी। Sir, our party is given 30 minutes of time, sir. So kindly make sure of that time. आप बोलिए तो। वही तो, party is given 30 minutes of time. आप प्लीज स्टार्ट। Sir, at the outset, I'm so grateful to place my views on the national budget 23-24, sir. Sir, despite of the precarious situation globally, aftermath of pandemic and the war between the Ukraine and Russia, the finance minister managed to bring down, even though all the things, the global economic turmoil has been happening, the finance minister managed to bring down the fiscal deficit from 10 to 5.9%, sir, and the growth rate is around hovering around 6 to 7%. But how far the vision and the dream of the Honorable Prime Minister's $5 trillion economy can be achieved, sir? Sir, of course, we do understand. माननीय सदस्यगण, कृपया बातचीत बंद करें। नो मर्मरिंग प्लीज, प्लीज। Sir, we do understand that Honorable Finance Minister made her budget very balancing, sir. Sir, the 10 lakh crores of capital expenditure, which is coming around 3.3% of GDP. And there is a feel-good factor among the middle class through direct taxes, sir. And at the same time, if the government of India would have slashed down the cylinder price, the gas cylinder LPG price, they would have managed to gain a lot of attraction from the women voters, sir. But perhaps they missed that electoral gamble, I guess. Sir, primarily, I have my own reservation when it comes to my state of Andhra Pradesh, where my state was unscientifically bifurcated, and the injustice is made to my state many more times. I've represented in this house itself, and I wanted to reiterate this to this government. Sir, the people of Andhra Pradesh, it is deeply bothering why this is the 9th consecutive year for the budget, sir. There is no prominent allocations made to my state, sir. And it is really, really heart-wrenching for the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, as I said, the Andhra Pradesh state was bifurcated by the same old Congress party without any rhyme or reason, sir. Sir, just only for the political foul play or the political benefits, they have splitted the Andhra Pradesh state, divided. It's just like a birthday cake, sir. There is no any scientific evidence. When the state is getting bifurcated, they should have to see the repercussions, what is going to happen. But as I said many more times, the Hyderabad capital city is given to the Telangana, sir. Never in the history of independent India, when the state got bifurcated, the capital city will be restored with the residual state, sir. But here it is completely turned around. Sir, here the people of Andhra Pradesh invested our sweat and blood for about 70 years, sir. Sir, in turn, what we have achieved, and the great Hyderabad city has went to the state of Telangana, sir. Sir, now, as I said, sir, 9 years of the budget, there is no prominent allocations for the state. And also, that the act is made in this floor of the house, and the government of India should have to honor the act, sir, should have to implement the act, sir. But now the ruling party has left the people of Andhra Pradesh in lurch, sir. And I wanted to reiterate, sir, which is very loud and clear. And the parliament should have the ears to hear my voice, sir.
and all the country should have to understand, sir. Sir, these and the Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, has promised in the floor of the Parliament that in compensation for the bifurcation, Andhra Pradesh will be given the special category status, sir. So what all the benefits, what we get from this special category status, I would like to read out, sir. The preferential treatment in central assistance, the concession on excise duty to attract the industries, additional budgetary support from Government of India, 90% will be shared by the Government of India in centrally sponsored schemes, and 10% can be availed through loans. Sir, the tax concession to attract the industry, sir. Above all the above assurances approved by the Union Cabinet in March 2014. Sir, here Telangana is not the new state, sir. Andhra Pradesh is the new state. We have been facing the burdens, we have been facing the troubles since 9 years, and the Telangana agitation for 4 years. So we are really dying for the development, sir. So all these 13 years, we have lost the time for the development, sir. Sir, secondly, I would like to convey to this house that Article 4, it says that the bifurcated state under the Article 3, the supplemental, incidental, consequential measures has to be taken care by the government and the parliament, sir. Where are all these? I've been asking, sir. Sir, for the better understanding, so many the ruling party, I would like to quote in Hindi also, sir. सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करना चाहता हूं. मुझे ऐसा लग रहा है, सर, मैं थोड़ा इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं, सर. भगवान राम को 14 वर्ष वनवास को भेजा गया था. उसी प्रकार हमारे आंध्र की जनता के साथ 10 साल का अन्याय किया गया, सर. सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विनम्रता पूर्वक से अनुरोध करता हूं, सर, आप भगवान राम के भाई भरत जैसा आंध्र राज्य को अपने कंधों पे रखकर विकसित रूप से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, सर. मेरा विनती है, सर. He himself is Bharat. Thank you. He himself is Bharat. Sir. Yes, carry on, please. Sir, and the AP Reorganization Act, sir, I would like to come to the AP Reorganization Act of 2014. The less I speak on this, the more the ruling party will be in the comfort zone, sir. Sir, we are not here to enjoy the luxuries. We are not here to enjoy the comforts. We are here to sweat it out and protect the rights of our country, and especially for the rights of my Andhra Pradesh state. We are here to make the legislation, sir. And here I request through you, sir, to the government to honor the act, to implement the act. Sir, where we have to go, sir. And this is, after all, a number game, sir. We are just 25 in number. That doesn't mean our voice is low. Our voice is loud and clear, sir. But the government should honor the act which is passed in this very house, sir. And I'd like to mention the few of the points which is included in the AP Reorganization Act, sir. Sir, the new railway zone. Sir, the railway zone has to be given to the state of Andhra Pradesh, sir, the South Coastal Zone, which is also included in the act itself. But 9 years happened, nothing is being done, sir. And regarding the Polavaram project, the Honorable Minister rightly here in this house, sir, Gajendra ji, I'm just requesting you, sir, this is almost 9 years happened, and the revised estimation, which is around 55,000 crores, but that was estimated for 2019 and 20. And this year is 2023, sir. But how much the estimates will grow? And this is all the public money. We are not giving from our pockets. But this escalation will grow on, grow on, and grow on. And we are wasting the money of the public, I guess, sir. Because the project has to get completed. And the last government, sir, I'm clearly stating, the last government has taken the contract of Polavaram project. And what they have did for the Polavaram project, 9 years happened. There was an lapses in the technicality. That diaphragm wall was breached. And up till now, that particular thing is not being addressed.
The investigation is going on and some technicalities is coming into the picture, but nothing has been happening since 1 year, sir. The project is been stalled since 1 year, sir. Kindly, I request the Honorable Minister to make the cognizance of this particular issue, sir. And regarding the major port, sir, I've been talking about the major port, about Dugirajupatnam port, sir, which is included in the act. It is clearly stating that in the year 2018, the first phase of the port works has to be get completed, but nothing has been started up till now. Why is this stepmotherly treatment to Andhra Pradesh, sir? Sir, due to some technicalities that they have shifted to Ramayapatnam port, but still the works has to be get started, sir. And regarding the Kadapa steel plant, and our voice, sir, the Kadapa steel plant, always the Honorable Chief Minister comes to the Prime Minister and the Honorable Home Minister. We've been asking for the funds for the allocation of Kadapa steel plant also, sir. And we talk about the major rail projects, sir, especially the metro projects for Visakhapatnam and Vijayawada. So what happened to all these projects, sir? How can we compete with Bombay? How can we compete with Bangalore, Hyderabad and Chennai, sir? Sir, we are having the biggest cities is like Visakhapatnam and Vijayawada, sir. And of course, my constituency, Rajahmundry also. So I request through you to the Honorable Minister and the government to sanction the railway project, the metro railway projects to Andhra Pradesh, sir. Sir, coming to the Greenfield crude oil refinery and petrochemical complex, this is also mandated to establish in Andhra Pradesh, sir. Sir, as we all know, perhaps the country must be knowing about the KG Basin. The KG Basin is located in the area of East and West Godavari's and the Krishna district, sir. Sir, you are taking out the oil and diverting to the Gujarat or any other places. So why can't we have the petrochemical complexes in the state of Andhra Pradesh? And how much the cost effective is been happening to the country? But the government of India, for erecting these petrochemical complexes, the government of India is asking for the viability gap funding, which was not mandated in the act, sir. Sir, I would like to reiterate to this house, why not the petrochemical factories, complexes are there at Daheja in Gujarat and Pardeep in Odisha. Did you ask for this viability gap fund in that particular area, sir? Perhaps I don't think you have asked for the viability gap funding. Therefore, I request the Honorable Finance Minister to allocate funds for this petrochemical complexes, sir. Sir, coming to the national picture as a whole, I appreciate the Honorable Finance Minister for delivering expansive budget amid the global economic turmoil, sir. It is good that she has opened the strings and pleased the taxpayers, especially in the view of the upcoming 9-state elections, sir. However, financing the fiscal deficit is challenging, sir. Sir, look at the receipts and the expenditure. So where the government of India could manage to get 17.5 lakh crores, sir. It is a fiscal deficit, sir. It is very challenging. Sir, the House would be very happy if the Finance Minister explains and elaborates the roadmap where these golden eggs are going to invest and how can this golden eggs hatch to become the golden goose, sir. Sir, my suggestions here to the government is primarily, apparently, we need to understand our strengths, sir. Sir, our Honorable Prime Minister always says, buy local, Atmanirbhar Bharat. Sir, we all know that the government, how come the public uses this nationalism? So we are talking about the Atmanirbhar Bharat, sir. But the government should show the sources to portray this nationalism, sir. Sir, in this context, I would like to give a suggestion. This is open the local marts for the groceries, for everything, sir. Open the local marts, name it as a Bharat Mart or whatever it is. But
this local marts has to open across the country in small villages also from the length and breadth of the country, sir. And the only products which is available in that local mart should be made in India. And the local promotion should be happened, sir. In turn, the government should encourage with incentives. The government should encourage with the tax benefits, sir. So definitely, I think this model will completely will achieve the dream of the Prime Minister, sir. And coming to the imports, sir, as we all know that imports, the crude oil is the maximum imports what we've been importing to our country, sir. So the alternative for this, the government is in this budget happened to allocate some 33,000 crores in the green energy and 17,000 crores in the renewable energy. Sir, in the state of Andhra Pradesh, we are encouraging the pump storage, which is the hybrid model, which is trending now, sir. The Honorable Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy ji, has also inaugurated 5,000 megawatt of this pump storage model, sir. So perhaps the country should think on this grounds and to extend across the country so that at least by this year, if we can curtail to 20% of the crude oil imports, that will be a very good move, sir. And the second, the biggest import, what we import is very lucrative gold, sir. So I wanted to be very clear. So whether I could speak this, whether I could announce this, but still I'm going forward, sir. Sir, increase of the export duty in the gold. However, apparently the number 2 gold, which comes from the borders or which comes from some other countries, and the currency which is lying, the 2,000 rupees notes, which is lying with the big tycoons, will come into the circulation, sir, and allow it. And after coming all these 2,000 notes into the circulation and curtail and seize the routes of smuggling, sir. This is a win-win situation, sir. Almost, I think after the demonetization, we hardly see the 2,000 rupees notes now, sir. Sir, it is laudable that Government of India has done outstanding works in terms of road networking, sir. I should appreciate Nitin Gadkari ji for this. He also visited my constituency. And from this past 9 years, the Government of India is doing a phenomenal job in terms of the road networking, sir. Sir, the industrial corridors, sir. So the government has to be very aggressive in promoting the industrial corridor from north to south and east to west, sir. Sir, here I would like to quote Swami Vivekananda ji. As rightly said, sir, youth is the foundation of the country. And they are the great asset to any nation, sir. They are with full of energy, enthusiasm, and innovative ideas, sir. Sir, he called channelizing the energy into the right direction. They can drive the country on the path of progress. Sir, the youth in the country is the great asset for India, sir. Almost 50% of the population is youth, sir. Sir, likewise, in this house also, we are not less than 70 to 80 members of youth parliamentarians, sir. Sir, my request here is to create a parliamentarian groups and send them across the globe, sir, for the study tours along with the scientific researchers, sir. Sir, we are ready for the nation building, sir. Sir, I would like to mention Taiwan is very famous in manufacturing semiconductors. It almost produces 50% of the global demand. Why not India, sir? Why not India? And I'd like to quote the Singapore, sir. Singapore is famous in electronics, logistics, transportation, and even biomedicines. Why not India, sir? Sir, the floriculture, agriculture, and the horticulture. So why can't the government will come up with the latest technology, sir? And when it comes to the floriculture, Amsterdam and Vietnam and Thailand is doing very well in terms of the agriculture and the horticulture, sir. The electronics in Japan. And why not all this in India? So we are not short of any competence, sir. We can move the world. But at the same time,
constructing this industrial corridor, creating SEZs, creating MSMEs, creating small scale industries. It will create, it will generate, it will accelerate the flow of money, sir. Sir, one thing everybody should remind, that our strength, we need to identify what are our strengths. We have a vast coastline. It is almost thousands of kilometers, sir. Sir, the marine products, the exports are really, really high, sir. So why can't the government concentrate? Of course, the government has allocated 6,000 and odd crores in PM Matsya Sampada, but still it is not enough. Sir, even Vietnam, even the Singapore and the nearby country, Bangladesh, is doing very well in terms of aquaculture, sir. We need to promote more, sir. In my state of Andhra Pradesh, under my leader, pragmatic leader, Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, we are constructing 9 fishing harbors without the support of Government of India. So kindly consider this suggestion also, sir. Sir, finally, I wanted to reiterate to this government. Sir, if you look at the breakups in sector-wise, 46% of the population are under agriculture, sir. Sir, how much the contribution of GDP through agriculture is just 20%. Sir, just because of lack of technology, just because of the promotion from the government, the farmers has to understand. The government should push the farmers to inculcate the new technology, sir. Sir, see Vietnam, how best they are doing. Get the scientific scientists or trainers from the different places of the world and train our farmers. Definitely, we could contribute more, sir. Sir, every youngster should feel that I can do agriculture when I become elder. But none of the youth in the country are ready to do the agriculture, sir. This is the fate of the country. And the second thing is 32% of population dependent on service sector, sir, and contributing phenomenal and extraordinary. The highest is 54% of our GDP, sir. And 21% of the people are dependent on industry, sir. Sir, contributing 26% of the GDP, sir. And it has to be also improved, sir. Sir, with these suggestions, with these points, I'd like to conclude. Before concluding, sir, with the folded hands, sir, from the people of Andhra Pradesh and on behalf of my Chief Minister, I request Government of India to grant us special category status, honor the act. Sir, we are like a small baby, sir. I request the Government of India to care us, nurture us with empathy, and with just a father figure is there in front of us, sir. But why the government is not honoring the act, sir? Why the government is not implementing the act, sir? Sir, with these words, I conclude. Definitely, the God is there, sir. God is watching everything. Definitely, Well the said, good days well said. will come to the state of Andhra Pradesh. Thank you so much, श्री sir. स्वागत राय जी। शौकत राय जी, अच्छा नहीं बोलना चाहते क्या? Sir, I rise to speak on the budget discussions. It is very unfortunate that yesterday also budget discussions took place. Today it is taking place. The finance minister has not been present on either occasion. The budget discussions belong to the Lok Sabha. Rajya Sabha has no power. I understand the finance minister is from the Rajya Sabha. Why isn't she there either of the day? आप क्या बोलना What is चाहते he हैं आप? talking about? आज प्रधानमंत्री जी का डे है वहाँ क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, इसलिए जितने भी मेंबर तो राज्यसभा के मेंबर ये हैं कोई वो वहाँ explanation प्रेजेंट हैं क्वेश्चन डे के कारण। वो आ रहे हैं, वो दोनों फाइनेंस आप ये मिनिस्टर बताओ, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, ये मत कहो on जवाब। behalf of finance minister, ये I am minister sitting of here. state है, sir. He is in ये Rajya कितना Sabha. संभालें? Honorable Prime Minister is there. includes in सूरत the में भी minister। नहीं रहते हैं। दूसरी बात है सर, the other minister, railway minister, whose budget also comes up on this, he is also not there. These are all big people. They don't care. Otherwise, Lok Sabha has full power as far as budgets are concerned. दोनों नहीं है। ये मजाक है क्या? नहीं नहीं नहीं,
Railway Minister should be present to listen to our objections. Sir, I speak on the budget discussion. Before I go to my main demands, I want to mention 2 points regarding our state of West Bengal. The West Bengal has been deprived of its share of NREGS funds. 7,300 crores are spending from the center. Along with Sudip Bandyopadhyay, we all went and met the rural development minister. Our local minister went and met him. He said everything is all right. Still money is not being released. He also belonged to a rural area. Just imagine the situation in the rural economy. If total NREGS funds are stopped, people will be starving. And this is, माननीय और सदस्य, या तो आप गोली को रख दो जो हाथ में गोली फाड़ी है ना आपने। नहीं ये तो हाँ, एलेक्स है, एलेक्स गला है। ठीक रखने के। गला ठीक है। ये कोई अलग पानी गोली देता हूँ नहीं है। आपको ना, सर, गर्म पानी। प्रधानमंत्री जी के तरह वो तो पानी पीते हैं, मैं एलेक्स खाता हूँ। गर्म पानी। हाँ। ऐसे गोली गैलेक्स खाना, गोली खाना सदन में अलाउ नहीं है। सर, मैं This is for the health, sir. for health. Now, I demand that the money for NREGS for West Bengal should be released immediately. And the government should give up its cruel attitude. Number 2, I have to speak something about railways. The finance minister made a big hue and cry that he has given 11,000 crores to West Bengal for unfinished projects. But nothing is finishing. He will earn name as a railway minister who's very smart. He is starting Vande Bharat trains so that PM can go and inaugurate. These have no long-term benefits. And in West Calcutta metro system, he is inaugurating truncated lines. That is, there is a line from Behala to Bibadibag. He goes 1/3 and inaugurates up to Joka to Taratala. So I demand that whatever railway projects he is doing, let him complete them instead of inaugurating truncated lines. Sir, I wanted to speak on the budget. Nirmala Sitharaman herself called her budget beautifully balanced. I've never heard a finance minister praise her own budget. She is saying India said to be $5 trillion economy, budget beautifully balanced. I'll talk about the balance later. But it's unfortunate that the finance minister budget speech does not mention the words unemployment, poverty, inequality, inflation, or equity anywhere in the speech. So even if it is beautifully balanced, it is that of an accountant. This budget has no vision about the future, and it is not futuristic, but opportunistic, anti-people and anti-poor. This is what Mamata Banerjee said about the budget. Sir, unfortunately, as soon as the finance minister presented his budget, the next day, an avalanche took place. Avalanche of what? Hindenburg Research Report. One short-selling firm from America, they released a report about a company in India. I will not name the name. Sir, when we were small, after sunset, we could not use the word sap. My mother used to say, don't say sap, say lata, lata. So now there is a new word. We cannot mention somebody's name. We have to a company, this company. But this company is everything. We can't mention the name. Just like my mother told me when I was
young living in a village. Snake we could not mention. You have become the new spokesman for the ruling party to prevent the opposition protest. You have become the new spokesman after being dropped from the ministry. You have started explaining everything. Go back to the ministry. अरे आप That is, इधर that बात is the कर रहे- new way. आप The- बात है ना माननीय सदस्य Sir, इधर करा करो, कोई नियम हो तो इधर बताओ, हाँ, उनको क्यों नियम बता रहे हो some भाई? professional hecklers have sprung up. Their job is to disturb the opposition whenever they speak. I cannot take concern about them. Now, sir, I'll be very brief on this matter. I have other things to speak about. The Hindenburg research report said that a certain company did round tripping of its finances and they bought up assets in India after round tripping them from abroad. After that, an avalanche. You know, in the snowy areas, the ice comes down. The ice came down on this company's shares. In 3 days, it lost 10 lakh crores of rupees. Now, if the ये कौन सी कंपनी आप लोग बताओ इसका नाम तो नहीं किया जाए, साफ है. तो अरे हमारा कोई डर नहीं है, अदानी बोलने से ये लोग बोलेगा काट दीजिए, उनका नाम नहीं करना चाहिए, ये साफ है. तो सर, I have a simple demand before the finance minister. She has got the SEBI under. If a company has done round tripping, it is the job of SEBI to look into it. I demand that she ask the SEBI to inquire into fallen shares of this certain company. Also, the Enforcement Directorate, ED, matter of fear for the opposition, is also under the finance minister. They are investigating each and every opposition politician. Why the ED is not investigating the affairs of this company? This is. He is not in opposition. Yes, very right. Lalanji is first-class leader from Bihar, president of the JDU. He is supporting me, and I thank him for the same. So now, I'll call this budget basically an anti-farmer, anti-poor, anti-rural areas budget. You know what they have done? They have reduced allocation for MG NREGA. क्या है? क्या? तुम्हारा डिवोर्स हो गया? आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब. हाँ. अच्छा, ठीक है. Sir, there has been reduction in the allocation of MG NREGA and cut in food, fertilizer and petroleum subsidies. This is anti-poor. Sir, you will know that food subsidy has been cut from 2.87 lakh. Sir, what is it that I'm saying that is objectionable? Please, This young man is माननीय सदस्य प्लीज he's shouting. प्लीज. You put him down, sir. Food subsidy has been cut from rupees 2.87 lakh crores to rupees 1.97 lakh crores. Fertilizer subsidy has been cut from rupees 2.25 lakh crores to 1.75 lakh crores. These cuts will expose Indian farmers to the vagaries of the global market and render the economics of agriculture even more fragile. This is a very serious matter. This should be looked into. Sir, what were you expecting? I was actually originally thinking of praising the finance minister because she has called herself the budget is beautifully balanced. So I thought that yes, it's balanced.
but his balance is that of a accountant. You know, in the finance ministry, there is a deputy secretary who tallies the budget, and he ultimately balances both sides. The finance minister has done just that. This was the opportunity when inflation was under control, GDP was rising, current account balance was better, fiscal deficit was under control. This was the time to take a big step forward. What did Abhijit Vinayak Banerjee say at the time of pandemic? He said that give some cash dole in the hands of the poor. The budget does not mention anywhere the word migrant labor, who were the biggest Achilles heel of the Indian economy. People walking hundreds of miles to their destination when the pandemic broke. They have not been mentioned. The top economists of the world wanted them to be given some cash dole, some money. The finance minister did not. The other thing she could have done in a stable macroeconomic situation, she could have reduced the prices of petrol, diesel, and of LPG. Because if you have a little financial space, that is the time to give relief to the common man. She did not do this because she had to balance the budget beautifully. So this budget ultimately turned out to be what? Anti-poor. Anti-poor people. So that is the budget. So now you're talking about digital India. Now digital India is all right. But sir, you must be knowing that technology takes away jobs. Today, all the big tech companies like Microsoft, Meta, Amazon, they are all retrenching people. They are called pink slips in America because technology always relentlessly takes away jobs. So to talk about digital India, Industrial Revolution 4.0, artificial intelligence 3 centers will not solve India's problem. India's basic problems are poverty, destitution, migrant labor, and of course, unemployment. The employment has not been addressed at all. The finance minister will come and say, see, I have increased so much in capex. Capex is what? Capital expenditure. How much she has given? 10 lakh crores. Very big sum. But does the capex get translated into projects anywhere? No. You give the money today, the project will take another 1 year, 2 years to start. What happens in the meantime? And when you are building infrastructure projects, the main problem is that they take a lot of time. Some people get employment during construction. But after construction is over, they lose the jobs. So you are taking India towards a jobless future. From a very favorable situation, you are taking India to a jobless future, Berojgar. I see Mr. Gajendra Singh Shekhawat doing namaskar to me. I like that. He is the favorite child. Oh, he did namaskar to you. And Navneet must have been. That would be only more proper. Sir, there are only 2 favored children. Who are favored children? One is this Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission. They have got 70,000 crores. And the other is PM Awas Yojana. They have got 79,000 crores. But NREGA has received a cut.
So if you develop only 2 projects, that will be enough to alleviate India's problems. I do not think so. I think you are making a mistake. अरे सुनिए ना, आप जो किए हैं, मेरे पास ये है, आप क्या क्या किए हैं, जो नहीं किया है वो बोलना मेरा काम है, जो किया है वो बोलना आपका काम है। जो बोला है सुनो। हाँ दादा सर, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सुप्रिया जी से गाइड हो रही हैं क्या? सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये समझते हैं बुढ़ा आदमी बोल रहा है, इसको मदद किया जाए, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। जो किया वो बोलना आपका काम है, जो नहीं किया वो मेरा काम है। सर तुम पूरा पागल है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बीबी भाग गया, तुम पूरा पागल है। ये हटा दिया। माननीय स्पीकर साहब, दादा को नवनीत जी ने नमस्ते नहीं किया, इसलिए उन्होंने सुप्रिया जी का सहारा ले लिया। Sir, the other thing is, do you remember? ये प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया फार्मर्स इनकम 2022 में दोगुना हो जाएगा। आपको कोटा में भी तो फार्मर है, उनका इनकम दोगुना हुआ? नहीं हुआ। सर, they promised that by 2020 everybody will have a house. Everybody. कहाँ सब लोग का घर हुआ? आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्वरोजगार योजना, उसमें सब लोग का घर मिल जाएगा, घर नहीं मिला। सर, ये जुमला का सरकार है, एक साल एक सवाल उठाते हैं, एक साल। अच्छा डिवोर्स के बाद इसको दिमाग में गड़बड़ी हो। सर सर इसको तार कट गया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको तार कट गया। सर, लास्ट ईयर they made a promise asset monetization pipeline that they will get money out of the एक सेकंड। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, किसी भी माननीय सदस्य के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग मत करो। आपको वो करेंगे तो उनको भी इसी भाषा में कहूंगा। उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नहीं रोक नहीं, मैंने कह दिया उनको, बैठ जाइए, आप बोलिए। आपको नहीं अलाउ किया मैंने। लास्ट ईयर they spoke of प्लीज they spoke about asset monetization pipeline. इस साल है बजट में? नहीं, कुछ एसेट मोनेटाइज नहीं हुआ। They used to speak about disinvestment. अगले साल भी 50,000 करोड़ था, इस साल भी 50,000 करोड़ बजट में। कभी कोई आपका एसेट लेने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। Your programs are failing one by one. Announced, Nirmala Sitharaman has this advantage. She makes an announcement, forgets about it next year. But we keep last year's budget. We remember what all she said. And that's why, sir, this budget done with good intentions. At a time when Indian economy was recovering from the downslide of the COVID, missed all the opportunities. It turned out to be, I'll briefly complete my point, sir. बहुत डिस्टर्ब कर दिया, ये तार कट जाता है लोगों को और हमको डिस्टर्ब करता है। सर अच्छा, कल अधीर चौधरी गलवान के बारे में बोला कि चाइना कितना पॉइंट गलवान में दखल किया, कितना पॉइंट
अरुणाचल में दखल किया। क्या जरूरत था डिफेंस बजट बढ़ाने का? कहां बढ़ा? 1.5%. It has remained almost the same if you take in inflation. अभी तक छत्तीसगढ़ में माओवादी लोगों को मार रहा है। एक बीजेपी को आदमी को मार दिया परसों। कहा सीआरपीएफ का अलॉटमेंट? वो भी नहीं बढ़ा, 1.5%। ये लोग बोलता है हेल्थ और एजुकेशन में पैसा देगा। एजुकेशन में केवल 2.9% सारा बजट का अलॉटमेंट एजुकेशन के लिए। हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है, वहां भी कोई अलॉटमेंट नहीं है। उनका तार कट गया सर। सर, lastly I want to say that giving allocation is not enough. In our country, you have to see that on the ground, projects are implemented. Government has spent 22,000 crore less of what it had allocated for CapEx, capital expenditure, this fiscal. Allocating money is not equal to spending money, nor is allocating money equal to creating jobs. They have mentioned all तार काटा हुआ प्रोग्राम ये दिया है। सर, आप सुनिए, सर आप सुनिए, कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया, कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया। आप ये प्रोजेक्ट, इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया। सर क्या भाई, क्या प्लीज मानिए। सर ये क्या हो रहा है? ये एक तो प्रॉब्लम होगा। अभी भी हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी एंड एफडीआई, they constitute 40%. Since last year, FDI is escaping from the economy. You find out how much FDI money has gone out. Private investment is being squeezed out because the government is doing huge borrowings. So the private sector is not being able to mop up resources. So this point that I'm giving everything to CapEx, I'm creating a deficit financing that creates a problem. ये देखिए अनाउंसमेंट किया कुछ प्रोजेक्ट का, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, पीएम प्रणाम, गोबर धन, खेती, नेचुरल खेती, बायो इनपुट, मिष्टी, ये मैंग्रोव के लिए है, अच्छा है, अमृत धरोहर, इवन मिलेट्स। सर एक पैसा भी अलॉट नहीं किया, केवल फिनेंस मिनिस्टर ये बजट स्पीच में अनाउंसमेंट किया, बजट पेपर्स में इसका कोई मेंशन नहीं है। पीएम प्रणाम, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, गोवर्धन, नेचुरल खेती। और ये नेचुरल खेती क्या होता है सर? इसका कोई, आप गोवर्धन के पक्ष में है? कि गोवर्धन, बिल्कुल गोवर्धन योजना इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, और उसके लिए जो है 7,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन नहीं, you show me the budget papers. I am carrying all the budget papers. आप दिखाओ कहाँ allocation. I am carrying the budget papers. So these are all announcements without any meaning. So this is all cheating, fuzzling, defunding. ये सब वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट है। सर, लास्टली आई वांट टू से दैट आप देखिए, एक तो बजट पेपर में एक तो अच्छा पिक्चर है। हमारा रुपया कहाँ से आता है? हमारा रुपया इनकम टैक्स 15%, एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉर्पोरेशन टैक्स 15%, जीएसटी 17%। तो आप इनकम टैक्स आप छूट दिया, कितना? 0.1%। 38,000 करोड़ रुपया हमारा इनकम टैक्स, टोटल हमारा कलेक्शन जो है
25 लाख करोड़, उसका 1% है, ये कोई छूट नहीं है। और आप क्यों बड़े लोगों को सरचार्ज पर छूट दिया? वो देना नहीं चाहिए था, गलत किया। ये बजट इस टिंकरिंग, एक गवर्नमेंट 2 साल पहले एक अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया, उसमें थोड़ा सा इधर उधर करता है। ये भी बजट इकोनॉमी को लेकर टिंकरिंग किया। और देखिए, डिफेंस इज ओनली 8%, सब्सिडीज कम करके 7% कर दिया, स्टेट शेयर 18%। एक ही अच्छा काम हुआ, 50 साल के लिए स्टेट्स को 1 लाख करोड़ रुपया लोन दिया बिना इंटरेस्ट में, अच्छा है। स्टेट को 3.5% फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया, ठीक है। लेकिन ये है समय जब इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है। यही समय था टू मेक ए फ्रंटल अटैक ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी अगर स्टेबल है तो आप गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाओ, अपना दल भी स्ट्रांग होगा। आप भी करो अनुप्रिया जी, ये उसका ये मत रहो पैसा। सर ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, ये देश को लूटेगा, ये कुछ नहीं करेगा सर। आप और हमको गरीब के साथ रह के लड़ाई लड़ना है, और इसलिए मैं ये बजट प्रस्ताव को समर्थन नहीं पा रहा हूं। मैं फिर मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल का एनआरईजीए का रुपया अभी देना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के रुपया अभी देना चाहिए, और रेलवे मिनिस्टर कलकत्ता जाए और हमारा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को इनागुरेट करे। मैं बहुत आभारी हूं कि आप धीरज के साथ मेरे भाषण सुने। मैं आपको नमस्कार। श्री रंगप्पा बड़ने, किसको बुलाना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पार्टी के तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस पर मेरी बात रख रहा हूं। यह बजट भारत की आजादी के 75 साल होने पर अमृत काल का पहला बजट है। यह बजट महत्वाकांक्षी और समावेशिता पर केंद्रित है, जहां विकास का लाभ किसानों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती यदि सभी नागरिकों को तक पहुंचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लक्षित लाभों के सार्वभौमिकरण के साथ ही कई योजना और प्रभावी ढंग से लागू की योजना का परिणाम स्वरूप समावेश यह बजट है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू टॉयलेट का निर्माण किया गया है। आज दुनिया में भारत को एक उज्जवल सितारे के रूप में मान्यता दी है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी अंत्योदय को प्राथमिकता दी है और परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जिसका 2 लाख करोड़ पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी। यह गरीबों के हित के लिए उठाया एक क्रांतिकारी कदम है। अध्यक्ष जी, इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66% बढ़ा दिया है।
सरकार का ये कदम स्वागत है। अध्यक्ष जी, इस बजट में एमएसएमई पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और 80 पोर्टल को वापस में जोड़ा गया है। 130 लाख एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी की योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय करीब दुगनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में बन गई। देश करीब 2 साल तक कोरोना से लड़ा। देश करीब 2 साल कोरोना से लड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के आम आदमी के हित में को ध्यान देते हुए जनहित के फैसले लिए और इनका लाभ देश के सभी जनता को हुआ है। आज देश दिन तक 102 करोड़ लोगों को लक्षित किए हुए कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हुआ है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़े लोगों को बधाई देना चाहिए। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए नगद हस्तांतरण किया है। देश का किसान सभी और खुशहाल हुए। माननीय मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के तहत करीबन 70,000 करोड़ सभी राज्यों को दिया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाके में पानी की योजना होते हुए कई सारे ग्रामीण इलाकों को इसका लाभ पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पीएम गति शक्ति को बढ़ाने देने वाली 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक, ये इस पर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्माण, बहुपक्षीय कन्वर्टिंग और लॉजिस्टिक के दायरे में आए। राष्ट्रीय अवचरण पाइप लाइन में 7 कारकों की जुड़े इस परियोजना का लाभ सब देशवासियों को हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेटवर्क में 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्किंग में विस्तार करीबन करने के लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। अध्यक्ष जी, एक समय इस देश में आधारभूत सुविधाएं में कमी होती थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का कमी होती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार में ये यशस्वी कदम उठा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्माण में गति दी और माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में आज देश में सीमाओं तक वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हुआ है। एक समय था कि देश में सीमा पर सड़क का निर्माण नहीं था। आज यह सरकार द्वारा यह मानांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई में करीब 50% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राजमार्ग की लंबाई 91.287 किलोमीटर बढ़कर 2021-22 में
1,40,995 किलोमीटर हो गई है। कुल बजटीय करीबन 5.5 गुना वृद्धि हुई है। आज भारतीय राजमार्गों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये माननीय नितिन जी गडकरी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में आज मेट्रो रेल का जाल बिछा रहा है। यह बजट में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक साथ जब रेल कोच का आयात करते थे, लेकिन आज हम वर्ल्ड क्लास कोचिंग का निर्माण देश में करते हैं। अध्यक्ष जी, मोदी के नेतृत्व में देश अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण देश में करेगी। साथ ही अगले 3 साल के दौरान नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावला तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में लगातार यह बात रखता हूं। केंद्र सरकार द्वारा इसमें जल्दी से जल्दी अगर सहायता देगी तो निश्चित रूप से यह मार्ग भी बनेगा। दूसरा, कर्जत से पनवेल और पनवेल से उरण तक का मार्ग धीमे गति से चल रहा है, तो ये मार्ग पर रेल विभाग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में रिटायर कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में। सरकार की और उन को दी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के बजट में घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की बचत लिमिट को 1 लाख से 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख किया है, जिसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। परंतु इस बचत पर कमाए ब्याज पर जो टैक्स देना होता है, उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले बजट में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को ITR दाखिल करने पर एग्जेंट्स किया है, पर उनकी ब्याज में कई कमाई पर TDS कट नहीं लेगी। जब ITR भरने पर TDS कैसे वापसी मिलेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल के आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। इसमें सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट गए 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। एक अच्छा बजट यहाँ पेश हुआ, उसका स्वागत भी करता हूं। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट 2023-24 जो सदन में चर्चा के लिए, सामान्य चर्चा के लिए लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, जब भी सदन में बजट पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं बजट की सराहना करते हैं।
हमेशा आजादी के 75 साल हो रहे हैं। इन 75 सालों में जो भी सरकार बजट बनाई, सभी सरकारें दलित, पिछड़े, अकलियत, किसान, मजदूर के हित में कह करके लोगों ने बजट बनाई। लेकिन सरकारें बदलती रही, बजट बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग, आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। इसलिए महोदय हमें इसके तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बड़ी अरमानों से बिहार की 13 करोड़ जनता ने आपको 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम किया था। लेकिन 40 सीट में से 39 सीटें 40 बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेके विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहाँ है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही मंजूर दिए। सर यहाँ तक कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है। प्लीज इस मंदिर में हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ से जो भी घोषणाएं होती है जमीन पर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। 2000 बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई। लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी मान्य सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास का डालमिया नगर, डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे वैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज,
14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वही से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए, आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन आज तक वो सात में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन और झूठ के सहारा लेते हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है। और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं, आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं। आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं। और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप कुछ लोग अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है आज 75 वर्षों में आजादी के आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? इसके लिए सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है। और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय, अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए, अगर प्रयास आपका जब अवसर आए तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है महोदय कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था
जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा, इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत, जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा। और उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं, उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए जी। अरे महोदय, हमारा 20 मिनट का टाइम है। और भी वक्ता है आपके दल के, 20 मिनट प्लीज। का समय है महोदय। आपके दल के और भी मान्य सदस्य हैं, इसलिए इसलिए महोदय, आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा, तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए। देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का, जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा, तब तक के पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। और जब तक संख्या उनकी गिनती नहीं होगी, तो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी ये सरकार कैसे दे सकती है? कैसे दे सकती है? तो इसलिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है, ताकि जब बात उठती है हक की, हिस्सेदारी की, इस देश में आरक्षण की बात उठती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई है कि कौन सी जाति की कितना आबादी है, तो हम उनको आरक्षण कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जब इस देश के अंदर, जब अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, तो जातीय जनगणना कराइए और जो जितनी जातियां, जिनकी आबादी है, उस हिसाब से उनको भागीदारी दीजिए। आदरणीय वर्धनी मेहता जी, विकसित राष्ट्र बन सकता है महोदय। इसलिए महोदय, हम इस समान चर्चा पर एक बात सदन के माध्यम से सरकार से। Thank you, Mr. Chairman, sir. जी बैठिए, हो गया आपका विषय, हो गया। प्लीज जी मेहताब साहब। Thank you, Mr. Chairman, sir. The budget. कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। Accountant's report. जी आदरणीय मेहताब It is basically reflects the plan and program of the country and of the nation. So when something is said that it is only an accountant's job, I don't believe in that type of comment. There have been umpteen reasons to be apprehensive in 2023, more so while waiting for the budget. US Federal Reserve's unbridled aggression, rising cost of Ukraine and Russia, and China's COVID crisis, to name a few. Yet in the backdrop of like this government has decided to go bold and big on capex
and chosen consistency in a world characterized by randomness and volatility. The Prime Minister has outlined the period from 2022 to 2047 as the period of Amrit Kal. It is a vision to make India a developed country during this golden phase. To realize this, India needs to rapidly invest in social infrastructure. This investment would need to come from taxpayers' money and not borrowings. India's tax to GDP ratio is still below the critical mark of 15%. India's gross tax to GDP, which was 11% in financial year 2019, fell to 9.9% in financial year 20 and marginally improved to 10.2% in financial year 21-22. This is much lower when we compare ourselves with the emerging market economy, which is average of 21, and OECD, the average is 34%. Today, the country boasts more than 4.3 million crorepati's households, equivalent to 23 million consumers. They are spread all over the country. By 2047, if political and economic reforms have their desired effect, India has the potential to become the fastest growing economy in the world. This growth will not only make the Indian middle class the biggest income group in the country, but it will set to be major driver of economic, political, and social growth. Finance Minister's full-fledged budget before next year's general election can be commended on many counts. I mention only three. For staying the course on fiscal consolidation, changing the composition of government expenditure in favor of capital as against revenue spending, and third, welcome move relating to personal income taxation. In turbulent time like this, a good budget can only be said is just a good beginning. The turmoil in the global economy is likely to continue as the impact of higher interest rates shows up in weaker demand for consumption and investment. Geopolitical tensions continue to disrupt every supplies and trade as the resilience of the domestic economy gets tested by global headwinds. Deft fiscal maneuvers is necessary, like they were this year. Now coming to the basics, sir, there is need for some answers. PM Kisan allocation is 13.33% lower as compared to budgetary estimate of rupees 68,000 crores made in 22-23. The revised estimate of 22-23 was reduced to 60,000 crores, no doubt, but in 21-22, an actual expenditure was rupees 68,825 crore, which was incurred on the PM Kisan. The figure is there for all of us to see. Should we believe that people have moved from farming to some other avenues for better? Or should we believe that they have been pauperized and have become daily wage earners? On MGNREGA, this generated an all-time high, 389 crore person days of employment in 21-22. 363 crores in 21-22. Even this fiscal project is 290 to 300 person days will exceed the 265 crore plus generated in 29-20 and 2018 and 19. It is a demand-driven scheme. Whenever we make this point, always it is said it's a demand-driven. But here the figure shows how it has met.
The budgeted amount this year is 60,000 crores. The question is, how realistic is the assessment? If the next southwest monsoon is normal and the non-farm economy timely recovers, MGNREGA may not require any additional funding. Till then, do we have to keep our fingers crossed? Coming to free food distribution scheme, and this is a scheme which we have all experienced, moderated income inequality in many states. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana played a key role in keeping extreme poverty in the country at the lowest level. We didn't hear a single death because of hunger, because of this program. IMF report says extreme poverty was at the lowest level of 0.8% during the pandemic hit 2020. SBI study, State Bank of India study, has analyzed that several government transfer payments for the poor are adding rupees 75,000 to a household per annum. But I would like to draw the attention of the government to the design flaw, as ration records have not been updated since 2011 onwards. More than 40% of India's population is currently excluded from National Food Security Act. 40%. In many villages and slums, the most marginalized castes and communities are often without NFSA ration cards. However, states like Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, West Bengal, and Chhattisgarh have either universalized or substantially expanded coverage with state cards. Sir, here I would like to remind the government about the Supreme Court judgment of last August, that is 2022, which has directed the Union government to expand National Food Security Act coverage. Nothing has happened till now. Nothing has happened. And the answer that comes from the government is, let the census be over. Despite Supreme Court's direction, based on population projection, at least 100 million beneficiaries, especially children born in the last decade, are missing from the ration list. Where are they going to be? When are they going to be covered under NFSA? I come to another very important issue, where Odisha has been affected to a very great extent. I'll first put the figure of the budget, where food subsidy in Food Corporation of India under National Food Security Act, the revised estimate of 22-23 was 2,14,596 crores. This budget is 1,37,207 crores. There is a drastic cut. On food subsidy for decentralized procurement of food grains, 72,283 crores, which has come down to 59,793 crores. The government may say, because we have withdrawn Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, there is no need to procure more. And here actually the catch lies. The catch is Odisha produces more than 72 million tons of paddy. And we purchase, FCI plus state government purchases the whole amount from the farmers, because to help the farmers at the MSP rate. Very few people keep rice for their own consumption. Other than that, the rest is purchased. What will happen there? Now already Odisha government is purchasing, but Union government is not purchasing any paddy at all. No rice. Earlier,
rice was being moved through Kerala to Tamil Nadu and also to the northeast. Now that is also not being done. Why this type motherly attitude to Odisha? That is the question which I would like to put. With this curtailment of or minimizing the purchase, who are the states which are getting affected? Odisha is the major state which is getting affected. And I would like to say, FCI is not taking parboiled rice. Corporation is not making payments to Odisha, though that is due in there. Sir, this budget is of 45 lakh 397 crores, and which is an increase of 7.5%. That is laudable, as I had said earlier. But what is the position? The position is, as I would say, there is a structural problem with our budget. More than 40% goes for the interest, to cover the interest. 30% goes on salary. So are we correcting it to a certain extent? No, not much. We don't see any light from this budget. And I'm also reminded of another point, sir. You are aware, most of us are also aware. Are we at any point of time talking about Sahara India? 13 crore people had invested in that. What has happened? Doesn't government have any responsibility? We will say it is sub judice, Supreme Court is taking over, SBI is looking after it. But who is caring for these people, 13 crore people who had invested? No, not a single reply is coming from the government. Sir, coming to health issue, I would just deal with investors are 13, large number of people are affected. Sir, in a speech, Finance Minister has announced budget for health, not including research, will be roughly 86,175 crores, and that is 615 rupees for every person, if I calculate it as per our population. This is a 2.7% increase from the previous year and lower than the rate of inflation. In real terms, the health spending has declined. Vaccinating to a single child against all childhood illness in our country costs rupees 1,600. A day of hospitalization in the public hospital is estimated 2,800 rupees. At a private hospital, it is more than 6,800 rupees. Rupee spending on health by the government gives more return than out-of-pocket or private spending by citizens. National Health Mission allocates less than 3%, that is 717 crores of rupees to non-communicable disease. For communicable disease, it is 3 times more, that is 2,178 crores. For reproductive and child health service, it is 9 times more, that is 6,273 crores. There is a need to rebalance, to pay attention to non-communicable diseases. On education, sir, share of education has fallen over the past 7 years, from 10.4% to 9.5%. This is stated in the state's in the economic survey. While expenditure on social service increased from 9,15,000 crores to 21,32,000 crores, the share of education has shrunk from 42.8% to 35.5% between 2015 and 2022. As a share of the GDP, the budgetary allocation for education saw a minimal gain, that is 0.1 percentage points, from 2.8% to 2.9% during this 7-year period. On taxation, sir, Finance Minister has made 5 announcements to reduce the tax burden. 4 pertain to the new regime. The last one is for exemption
on leave encashment. But my question is the new tax regime attractive? Despite government's effort to simplify the tax system, the uptake of this regime is low due to the unavailability of common tax deductions and exemptions. Why should we have to run to the chartered accountant or a lawyer to understand how much tax I have to pay? Can't we make it simple? Even today, with this new tax regime, it is so cumbersome, it is difficult to understand. Very difficult to understand. Coming to the devolution of states, sir, the state share has never been close to 41%, though it has been announced by the Finance Commission, 15 Finance Commission. The state share has never been close to 41% due to cess and surcharge imposed by the Union government. Odisha government, our Chief Minister has been Naveen Patnaik has been repeatedly writing to the Prime Minister that you share some of this, but that is falling on deaf ears. It keeps major chunk of taxes, and what we have been asking, Odisha is facing natural disaster year after. Our only demand is that you allow, and this we have discussed, the state government also has discussed with the Niti Aayog, with the Prime Minister, that you make Odisha a special focus state. Time is exhausting. For at least 3 years. If a natural disaster hits Odisha, allow or declare it as a special focus state where 90:10, that is the center and state share for 3 years only, so that we tide over the situation and come up forward. Sir, on railways, I will be failing on my duty if I don't mention 2-3 words, because the rail minister is a member of this house representing our state. We find a significant feature. It has set aside nearly a quarter of its total capex outlay of rupees 10 lakh crores. The budgetary support amounts to 2.4 lakh crores. The goal is to raise the share of rail freight traffic from 27%, road transport is 64%, to 45% by 2030. Freight earnings are 2.5 times the passenger earnings. It is possible to improve on both counts. It's not unachievable. It is possible. The railways must adapt to become a transporter of FMCG, automobiles, and other high-value products for which last mile connect is important. On the passenger side, upper class travel should remain competitive vis-a-vis air and road travel. There is scope to raise both traffic and freight revenues. Despite pensions, can we imagine? Pensions of railway is over 25% of the total operating expenses of the railways. The budget numbers indicate 30,000 crores of rupees has been set aside for doubling of tracks. This was only 9,000 crores in 21-22. 32,000 crores to be spent on new tracks. That is 50% increase in 2 years. 40,000 crores on the rolling stock, which was only 8,000 crore last year. 8,000 crores for electrification. These are big numbers. Very big numbers. The obvious question is, from my state point of view, how much is actually percolating to the state of Odisha, which has been denied railway development for last so many years. The obvious question, of course, is whether railway have the capacity for absorption and implementation for this expanded capital. Capital investment in the railway is overdue, no doubt, but it needs financial reforms, administrative reforms, and greater independence. Before concluding, sir, I have a small demand, as my friend from Chandrapada has just now mentioned. The station is there, tickets are being sold, rail line is there, but it is not functioning. Passenger train should ply on that route. That is necessary. With these words, I conclude. Thank you. श्रीमती संगीता आजाद जी. धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे बजट 23-24
पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट 23-24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेईमानी हो गए। जब भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और कोविड के चलते लोअर मिडिल क्लास बन गया। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सरकारें अपने पिछले साल की कमियों को नहीं बताती हैं, उन कमियों के स्थान पर नए वादों की झड़ी लगा देती हैं। सच्चाई यह है कि 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन हमेशा ही दांव पर लगा रहता है, जैसे कि इसके पूर्व के बजट के अभिभाषणों में था। यह बजट भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है। महोदय, बजट में हर वर्ग के लोगों को डुबाने की कोशिश की गई है। जहां 5 लाख का इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, इसमें हर मध्यम परिवार को बहुत मदद मिलेगी। वहीं नई टैक्स रेजिम और पुरानी टैक्स रेजिम में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि किस टैक्स रेजिम में जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस अपने अभिभाषण में इस टैक्स रेजिम को अवश्य स्पष्ट करें। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के बजट में 13,000 करोड़ की कटौती की गई है। हम सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं और इस योजना से संचालन से ग्रामीण में पलायन भी रुका है, साथ ही साथ रोजगार के सृजन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के सभी लोग आंदोलित हैं कि उनका समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है और जो भी कर्मचारी ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका वेतन भी वो अपने जेब से दे रहे हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए 3,943 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावासों की जरूरत है। खास तौर पे मेरे जनपद आजमगढ़ में, जहां कई एकड़ की सरकारी जमीन अब भी खाली पड़ी है, मेरी सरकार से मांग है कि आजमगढ़ जनपद एक मंडल है जहां अभी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय संचालन में आया है, जिसके चलते कई जिलों के छात्र यहाँ पठन पाठन करने आते हैं। इन छात्रों के लिए भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावास बनाए जाएं। महोदय, बजट में आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम की सफलता को सरकार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य हेतु 500 ब्लॉकों का चयन करने के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ के समस्त ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाए। महोदय, आजमगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं है, जिसके कारण से भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। कौन सा ग्रीन लैंड है, कौन सी औद्योगिक भूमि है, कहाँ पार्क है, कहाँ क्रीड़ा स्थल है, कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ वनीकरण है, कहाँ सीवेज का प्लान है, इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं है। एडीए ने वर्ष 2031 के लिए महायोजना का मास्टर प्लान बनाकर 2021 में शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अमीर गरीब अपने आशियाने का सपना संजोए उस प्लान को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक भूमि अलग नहीं होने के कारण कारपोरेट समूह और बड़े ब्रांड की कंपनियां जनपद में अपना रुख नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ विकास और रोजगार पूरी तरह से ठप है। आजमगढ़ चारों तरफ से तमसा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ से सैकड़ों गांवों में जान माल का नुकसान होता रहता है। मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रंट बनाकर नदियों पर बाढ़ का नियंत्रण कर सके। और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी पर कमर्शियल क्रूज का उद्घाटन किया है। मैं चाहती हूँ कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए, ताकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था, उसे पूरा किया जा सके। आजमगढ़ को चारों तरफ से रिंग रोड के मास्टर प्लान बनाकर जोड़ा जाए और उसे मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, फूलपुर, निजामबाद और बूढ़नपुर के तहसीलों से भी जोड़ा जाए। सर, हाईवे की बात करूं तो NH-233 पिछले 6 सालों से बनने को है, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। PMJSY की सड़कों की बात करूं तो सत्र खत्म होने को है, लेकिन सिर्फ 50% काम ही इस पर हो पाया है। सर, इन सरकारी योजनाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए।
हर घर नल योजना जो सरकार ने अभी बात कही है, सिर्फ 30% अभी तक सर्वे हुआ है, बनने तो दूर की बात है। आजमगढ़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, घरेलू औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जाए। इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी में आजमगढ़ को भी शामिल किया जाए ताकि आजमगढ़ में भी नए उद्योगों की स्थापना हो सके और जो जिले से पलायन होकर बड़े शहरों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे रोका जा सके। आजमगढ़ का मंदूरी एयरपोर्ट पूरी तरह से बन के तैयार है, उसे जल्द से जल्द संचालन में लाया जाए और एयरपोर्ट से तहबरपुर बाजार होते हुए निजामाबाद, फरिया बाजारों से मोहम्मदपुर, वाराणसी 4 लेन तक जोड़ा जाए। आजमगढ़ के इटौरा में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और चक्रपानपुर में मेडिकल कॉलेज होते हुए मेहनाजपुर वाया सिधौना तक पूरी सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाए, जिससे वाराणसी आजमगढ़ के लिए एक अन्य सीधा मार्ग बन जाए और ट्रैफिक बढ़ जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वालों की राह आसान हो जाएगी। वाराणसी, लालगंज, आजमगढ़, गोरखपुर की नई रेल लाइन का बजट 2022-23 में स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। इसमें तेजी लाई जाए और लालगंज में एक स्टेशन बनाया जाए, जिससे वहां के लोकल प्रोडक्ट, अनाज, फल, सब्जियों को आयात निर्यात में आसानी हो सके और एक वंदे भारत ट्रेन को मेरे जिले में भी चलाई जाए। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, काले मिट्टी का बर्तन का उद्योग और रेशम उद्योग, जिसमें मुबारकपुरी साड़ियां भी शामिल है, ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके बिजली के बिल को माफ किया जाए, इनको आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और इनको जीएसटी से मुक्त किया जाए और छोटे व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए। आजमगढ़ में लाल सोना कहे जाने वाली लाल मिर्च की खेती होती है, लेकिन इसके भंडारण और निर्यात का प्रबंध नहीं होने के कारण किसानों को इसका मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए। सनई की खेती पहले हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब यह मृतप्राय हो चुकी है। अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो जूट उद्योग यहाँ स्थापित हो सकता है और यह मृतप्राय खेती भी पुनः जीवित हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में श्री अन्न की बात कही है। आजमगढ़ की भूमि इस तरह के श्री अन्न, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, जौ जैसे अनाज शामिल हैं, इसके लिए प्रतिकूल है। मेरी सरकार से मांग है कि ऑर्गेनिक खाद, सरकारी समितियों में ऑर्गेनिक खाद और श्री अन्न के बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे आजमगढ़ में भी इस तरह के श्री अन्न की भारी मात्रा में खेती हो सके। आजमगढ़ में मत्स्य संपदा योजना के तहत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नदी तालाब का जाल बिछा है, इसको भी प्रोत्साहन करने के लिए वहां के उद्यमियों को इसका प्रोत्साहन किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आजमगढ़ चारों तरफ से नदियों से घिरा है, गांवों को जोड़ने के लिए नदियों पर पुल बनाकर एक्सप्रेसवे और 4 लेन से जोड़ा जाए। सब 2 मिनट महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। आजमगढ़ बीच में होने के कारण पूर्वांचल का दिल कह सकते हैं। यह दोनों क्षेत्र से बड़ा जिला है, जिसका विकास पूरी तरीके से अधूरा है। अमृतकाल का यह समय और यह बजट लोगों के उत्सव मनाने वाला है, लेकिन अगर आजमगढ़ को इस में स्पेशल पैकेज दे दिया जाएगा तो आजमगढ़ के लोग भी इस अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। और अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। सर, देश के साथ साथ आजमगढ़ की जनता भी बहुत उम्मीद से माननीय वित्त मंत्री की तरफ और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद लगा के बैठी है कि अमृतकाल के बजट में आजमगढ़ को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिससे हम सभी लोग अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। सर, मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूं। मैं इतना भाग्यवान हूं कि तीसरी बार इस क्षेत्र में, इस बड़े हाउस में बात करने का मौका मुझे मिला है। मेरी भगिनी जो मेरे साथ झारखंड में गवर्नर थी, अभी राष्ट्रपति बन गई। मेरी पहली एक भगिनी प्रतिभा जी, वो भी मेरे साथ पड़ी हुई है, और रामनाथ जी भी गवर्नर थे। इसलिए मैं भाग्यवान समझता हूं। और मेरी भाषा जो आगे मैं मराठी में बोलूंगा तो भी चलेगा, हिंदी में भी बात करूंगा। सतारा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें मैं आता हूं। स्वातंत्र के पूर्व काल में जो 3 जिले सब भारत में प्रसिद्ध थे लड़ने के लिए, उसमें क्रांतिकारी नाना सिंह पाटिल जी थे और
मेरी एक कामना है, मनु तांबे जो झांसी की रानी कहती है, उसका मायका भी मेरे क्षेत्र में है, तो मैं चाहता हूं, मेरी मांग भी है कि मिलिट्री भर्ती के लिए कुछ एक विद्यापीठ बनाए, जो मिलिट्री एकेडमी जैसे एनडीए खड़गवासला में है और आईएमए जैसे देहरादून में है, वैसे अगर कोई मिलिट्री एकेडमी बने सेंटर की और महिलाओं के ट्रेनिंग के कुछ जबाबदारी लेंगे तो अच्छा रहेगा. आता म्हणजे मराठीत बोलतो. महाबळेश्वर पाचगणीच्या ज्या शाळा आहेत इंग्रजी माध्यमाच्या, त्यांना संपूर्ण भारतातून तिथे आपले पालक आपल्या मुलांना पाठवतात. महाबळेश्वर एक थंड हवेचं उत्तम ठिकाण आहे. हे दोन्ही जंगलाच्या प्रती असल्या कारणानं एनजीटी नॅशनल ग्रीन ट्रायबलची बरीचशी बंधनं आहेत आणि त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळामध्ये 150-200 वर्षापूर्वी जे क्षेत्र निर्माण झाले आहे त्या क्षेत्राचा जर विकास झाला नाही तर रोजगार जोपर्यंत मिळत नाही, घोडेवाले, खेळणीवाले, काही फळं विकणारे, लोकांना धान्य पुरवणारे, लोकांना रिक्षातून नेणारे, सायकल रिक्षा नेणाऱ्या लोकांना पोटा पाण्याला उद्योग मिळत नाही, तोपर्यंत रोजगार मिळावा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हे बजेटची एक आपल्या खासियत आहे. आणि त्यामुळं माझी आपणास विनंती आहे की एनजीटीच्या माध्यमातून भारतीय आणि महाराष्ट्र सरकारनं एकत्र बसून महाबळेश्वर सारख्या एका थंड हवेच्या ठिकाणाची जर विस्तार केला नाही तर भविष्यात ते तसंच राहील आणि म्हणून पोटापाण्याचा उद्योग होणार नाही. मेरे आणखी माझं म्हणणं आहे की कोकण आणि महाराष्ट्राचा पश्चिम विभाग जोडण्याकरता पोलादपूर ते सुरूर एक रस्ता आहे. साधारण शनिवार रविवार जेव्हा सुट्टी असते किंवा उन्हाळ्यात सुट्ट्या जेव्हा असतात त्यावेळा अलीकडून पलीकडे जायला एकाच गावातून कमीत कमी 3 ते 4 तास लागतात, जोपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण होत नाही. आपने संभवतः सूचना नहीं दी होगी, अभी दिए थे इंटरप्रेटर ने, हिंदी में बोलिए या अंग्रेजी में बोलिए, सुनाई नहीं प्लीज. मराठी का इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है तो सूचना न होने के कारण से. हिंदी में बोलूं मैं? हिंदी या अंग्रेजी में बोलिए जी प्लीज. मैंने कल भी इच्छा प्रकट करी थी लेकिन हुई नहीं, इसलिए मैं हिंदी में बात करूं. शुरू करूं जी करें. जो झांसी की रानी मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये जिसने आवाज उठाई थी, उस झांसी की रानी मेरे कार्य क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, उस गांव से आती है. तो मैं चाहता हूं कि भारत में एक ऐसी मिलिट्री एकेडमी बने जिस मिलिट्री एकेडमी का नाम मेरी झांसी नहीं दूंगी के नाम झांसी की रानी मिलिट्री एकेडमी हो, क्योंकि एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी वो पूना में है और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है. वैसे अगर एक एकेडमी बन जाए और महाराष्ट्र में जिधर सातारा में अजिंक्य तारा के पार्श्वभूमि पर अगर बने तो बड़ा अच्छा होगा. महात्मा फुले की पत्नी जो सावित्रीबाई थी, जिन्होंने पहले महिलाओं को शिक्षण देने का कार्य किया पूना में भिडेवाड़े में, उनके नाम से महिलाओं को शिक्षण देने की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि एक विद्यापीठ पूना है उसका नाम सावित्री रखा है. लेकिन अगर महात्मा फुले एक डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, शाहूनगर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है और अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, तो महात्मा फुले की पत्नी सावित्रीबाई इनके नाम से महिलाओं की एक शिक्षा की एक विद्यापीठ बने तो बड़ा अच्छा होगा. सातारा में स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण जो डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में अर्थमंत्री भी थे, उनके ही कॉन्स्टिट्यूशन में आता हूं और बजट की स्पीच में बोलने की मुझे मौका मिला है, इसीलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं. एक बात करनी चाहिए, जो सातारा सैनिक स्कूल है वो 2 जून 1963 में आदरणीय चौहान साहब ने निकाला है, लेकिन आज उनमें महिलाओं की संख्या 10 खाली है, बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो किसान के, कामगारों के और शिक्षा देने वाले शिक्षण के हो रही है, तो उनको फी जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए फी अभी बन रही है. तो अगर फी के अगर कुछ सहूलतें दी जाए तो बहुजन समाज के विद्यार्थी मिलिट्री एकेडमी जाकर कुछ अपना नाम कमाएंगे और आगे चल के जो आजकल मिलिट्री में जो जगह खाली पड़ी हुई है वो भरने का कुछ मौका उनको मिले. आज देखा मैंने पंतप्रधान आवास योजना का कम से कम 30-35 हजार घर बनाने का अर्जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आई थी, लेकिन जब तक कितनी जगह है, कैसे घर बना सकते हैं, काली मिट्टी में घर बनाना है,
मुरुम में घर बनाना है और जहां खदानें हैं वहां मुरुम बनाना है, तो उसका अगर एस्टिमेट जब तक बनाते नहीं है तब तक बनाना मुश्किल है। एक साथ 1.5 लाख 2 लाख ऐसा करके कभी घर बनेंगे नहीं। तो जगह कितने अवेलेबल है, कितने अर्जा है, कितने लोगों को जगह दे सकती है, उसका एस्टिमेट क्या हो सकता है, ये नहीं होता तो सालाना कम से कम 1000-1500 घर बनाकर ये प्रावधान जो है कभी बन नहीं सकता। अगर अभी मैं कल जब स्पीच सुन रहा था तो 15 साल के बाद जो व्हीकल हो गए उनको निकालना चाहते हैं, संख्या क्या होगी, कहां वो लेंगे रखेंगे, डंपिंग ग्राउंड कहां होगा, उनको तोड़ने की क्या व्यवस्था होगी, उसका मेल्टिंग कैसा होगा, होने के बाद जो बनेगा लोहा उसका उपयोग क्या करने वाला है, उसका जब तक आप प्लानिंग करेंगे नहीं तब तक ये गाड़ियां रास्ते पे आएंगी और जो छोटे रास्ते हैं वो फिर से छोटे बन जाएंगे। इसीलिए जब तक आप ये स्क्रैप किया हुआ मटेरियल डंपिंग की कुछ व्यवस्था करते नहीं तब तक ये होगा नहीं। इसीलिए पूना जैसा शहर है, कोल्हापुर शहर है, नासिक शहर है, महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े शहर है उसमें और एक प्रावधान है कि जिनके पास कभी गाड़ी के बैठने का शौक ना था उन लोगों के पास अब गाड़ियां हैं तो उनके अगर कुछ सहूलियत मिले थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करके कि 1 साल में आपको सहूलियत दी जाती है। और नई गाड़ी लेने के लिए अगर नई गाड़ी लेते हुए कुछ उसको फाइनेंस असिस्टेंस मिले और 1-2 साल का जो रजिस्टर का खर्चा होता है वो भी मिले तो लोगों को कोई सहूलियत मिलेगी और अपनी पुरानी गाड़ी जो देश को अभी हवा में तकलीफ होती है इसलिए देने के लिए लोग राजी होंगे। सहूलत अगर मिलेगी तो अच्छा होगा। व्यक्तिगत कर भरने के लिए आपने जो सहूलत दी है इसका मैं जरूर आभारी हूं, लेकिन रिटर्न भरना और रिटर्न भरने के लिए सीए के पास जाना, वकीलों के पास जाना, उनकी फी देना, ये लोगों को परवड़ता नहीं। और जितना भरा है उसका वापस आने के लिए मुझे पैसे दो मैं करके दूंगा, मुझे पैसे करके दूंगा, पैसे देते हैं हम ज्यादा और अब आय जो कम रिटर्न है वो आता नहीं, इसलिए उसकी अगर कुछ व्यवस्था कर चले। मेडिकल कॉलेज आपने जो निकाला है बड़ी अच्छी इसकी है, लेकिन इतने मेडिकल कॉलेज निकालने के बाद उसकी गति क्या है, कंस्ट्रक्शन चला है कि नहीं, और मेडिकल कॉलेज होने के बाद उनके लिए जिन लोगों को आपने वहां पढ़ाने के लिए और मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए मनुष्य बल है उसकी क्या व्यवस्था की है, ये जब तक अपने को पता नहीं चलता तब तक ये मेडिकल कॉलेज चलेंगे नहीं। अभी एक स्वच्छता के बारे में मलबा निकालने के लिए जब तक यंत्रणा नहीं होती, क्योंकि खाली मैन होल में अगर लोग छोड़ेंगे तो वायु से वो प्रदूषित होकर कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। जब तक मशीनें नहीं आती है और मशीनों लेने के लिए सहूलियत ही नहीं जाती तब तक म्युनिसिपैलिटियां हो, पंचायत हो या जिला परिषद हो, उनके लिए अगर कुछ व्यवस्था हो तभी ये हो सकता है। अभी बीएसएनएल के टावर के बारे में मैं आभारी हूं। दुर्गम भाग में मेरे क्षेत्र में टावर मिले हैं, लेकिन जब तक उधर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं और खड़े करने की व्यवस्था नहीं है तब तक ये बनने वाला नहीं। कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन पूरे करने के लिए अगर 5 साल लगते हैं तो ये चुनाव से वो चुनाव तक खाली आश्वासन ही दिए जाते हैं और लोगों के झोली में कुछ मिलता नहीं। इसीलिए फटी हुई झोली में कुछ डालना ये गलत तरीका है। इसलिए जब तक आप पूरा प्लान करके और एक काम करना चाहिए, गए बजट में जो आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन पूरे हुए या नहीं हुए और आगे करके क्या करना है, इसीलिए जब तक करते नहीं तब तक ये आश्वासन देना उचित नहीं है। पूरे देश में मैं सिक्किम में कभी राज्यपाल के पद पे रहा हूं। ऑर्गेनिक की जो बात है, अगर भारत का एक राज्य जनवरी 1916 में पूरे विश्व में अगर ऑर्गेनिक हो सकता है तो एक ही बात की पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। एक ही अगर किलो केमिकल खाद या उर्वरक अंदर लाया जाए तो उसको 25,000 का जुर्माना और 3 महीने की सजा, ये ऑर्डिनेंस निकालकर वो बिल में करके जब हुआ तो देश का एक सिक्किम राज्य जो है वो हुआ। ऐसे कुछ तरकीब निकाले कि जिसकी वजह से लोगों को प्रोत्साहन मिले और ऑर्गेनिक से जो चीजें बन रही है उसके खपत के लिए भी अगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो तो हो जाएगा। मुझे अभी एक यशवंतराव चव्हाण जी ने जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो सबके बच्चों के लिए
जात जमात इसका चिंतन नहीं करते हुए जिनकी आमदनी कम है उन पालकों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था में सहूलत दी है। 1200 रुपए तक जो इनकम था जिनका, उनके बाल बच्चों को भी सहूलतें दी गई। आजकल 1200 नहीं करे 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, लेकिन जात जमात पे एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तो भी सहूलतें है। लेकिन हमारे जो छोटे भाई किसान भाई है, कारीगर है और देहात में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को सहूलत देना चाहिए। और बड़े होकर उन्होंने 1 या 2, 3 लोगों को सहूलत देकर पढ़ने की वजह से जो शिक्षा पाई है उसके लिए उनको भी आधार देना चाहिए। मुझे मराठी में बोलने की थी लेकिन मराठी में बात नहीं कर सका, हिंदी में मेरे बात करने के लिए मुझे जो आपने संधि दी इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये बजट में जो अच्छी चीजें की है उसके लिए मैं बजट का प्रोत्साहन भी देता हूँ, सराहना भी करता हूँ। जो बातें कम हुई है और होना चाहिए ऐसी उम्मीद करता हूँ वो आप करेंगे ऐसा लगता है। इस जवान के साथ मैं मेरे वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी। श्री M.K. राघवन जी। Sir, to allow me this occasion to participate on the discussion of Union Budget 2023-24. First of all, I strongly object this year's Union Budget 23-24. Being the last budget of this government, I had high hopes. Unfortunately, after presentation of this budget, I lost all hopes. So I wish to bring in few suggestions for your consideration and necessary actions. Sir, what happened Manrega in this budget? Sir, Madam Minister is really neglecting the rural population. This year's budget clearly establishes this. The contribution to the Manrega was monumentally reduced to 60,000 crores. So what is the result? By slashing funds to Manrega, government is bringing in a disaster into lives of our common men. This world's largest social security legislation is the brainchild of our government in 2005, led by UPA. Sir, but unfortunately, we feel sad that Manrega is being totally neglected by the union government. My suggestion is that the minimum wages under Manrega must be increased at least rupees 400 per day, and timing should be reduced, giving more thrust to physical asset creation by channeling these resources to agriculture and related activities. I humbly request Finance Minister to enhance the funds for Manrega at least rupees 1,25,000 crores to ensure 100 days of employment in a year. Sir, Madam Minister, she's totally neglected my constituency Kozhikode as well as entire Kerala. Of the 2,40,000 crores earmarked in the budget for railways, Kerala is expected to get only rupees 2,033 crores. So this is very minute amount for our state. I wish to bring to your urgent attention that the file for redevelopment of Calicut railway station has been pending with RLDA for years now. It is really sad that there is no provision for Faro Kangaripur railway line and Guruvayur Tirunavai railway line projects in this budget. We request you to provide Vande Bharat train connecting Calicut Bangalore, Calicut Trivandrum, and Calicut Chennai, along with extension of train 16511, 22 connecting Kannur, Yeshwantapura to Calicut, and to provide us with more trains to Malabar region. Sir, the most important issue I have to raise today before you is regarding setting up of AIIMS at Calicut, Kozhikode. For the past 8 years, I have been requesting Honorable Prime Minister and Health Minister for sanctioning AIIMS at Kozhikode. Sir, land acquisition has been already completed for setting up of AIIMS at Kinalur, Calicut. I request Finance Minister to provide fund allocation for setting up of AIIMS and to expedite the same.
Sir, Calicut Airport is one of the highly profitable and the only airport owned by Airports Authority of India in Kerala. Sir, however, Calicut Airport has been totally neglected in this year's budget. We request you to kindly provide sufficient funds for expansion and extension of Calicut International Airport. Sir, regarding Bepur Port, I have requested this House to upgrade Bepur to major port and improve connectivity to Lakshadweep Islands many times. Unfortunately, no initiative has been taken in this regard. My humble submission before you, kindly provide us with the funds under Sagarmala to develop Bepur Port and also for Bepur Malapuramba road connectivity. Sir, I thank the government of India for including Bepur under the Swadesh Darshan scheme and request to allot more funds for tourism-related activities for Calicut. Sir, regarding setting up of a Kendriya Vidyalaya at Ulliyeri, Calicut, I request your other intervention. Sir, I appreciate the Honorable Finance Minister for increasing the duty on compounded rubber. But my only concern is whether existing international agreements entered by us will permit this. I seek a clarification on the same. I request you to enhance the allocation to rubber board and spices board. It is disappointing that there is nothing in the budget for the coconut farmers of Kerala. So I request the Honorable Finance Minister to provide more funding for coconut board to ensure procurement of coconut from farmers through NAFED. Sir, subsidies to FCI under National Food Security Act has been cut drastically to 1,37,207 crores from 2,14,696 crores of the revised estimates of 2022-23. Sir, this can adversely affect large number of the people of our country and the functioning of PDS system. So my humble request is provide more funds and to take necessary steps to strengthen PDS system of our country. Sir, our country has the rich tradition of protecting the minorities. However, for the past few years, sir, there is total neglect towards minority communities. I request Honorable Minister to increase the amount allocated for minorities to at least 10,000 crores. So I am not mentioning income tax since Madam has clearly made it clear that the intention is to move towards new tax regime. In doing so, our people will lose large amount of accrued benefits. There is a lack of clarity amongst the minds of taxpayers regarding new and old tax regime. So my request is to bring in a unified income tax structure by returning the welfare provisions of the old tax regime. Sir, I request the Finance Minister to grant the pending GST dues to Kerala immediately. Madam, otherwise, people of Kerala will not even be able to breathe fresh air since it may also be taxed by the state government in future. Sir, we are very much worried at the twin problem of rising inflation and unemployment, which this budget totally failed to address. Since time allotted is limited, I am concluding my speech. I have humble submission before this government. The union government is duty bound to respect fiscal federalism. Hence, I request you to consider my suggestions, which I proposed before this House. With these words, I conclude my speech. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Sudhir Gupta ji. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस शानदार बजट के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया है। मैं कहना चाहूंगा, फूल इसलिए अच्छे हैं कि खुशबू का पैगाम देते हैं। फूल इसलिए अच्छे हैं कि खुशबू का पैगाम देते हैं, और बजट इसलिए अच्छा है कि जनता के मन के भाव को जान लेते हैं। और वित्त मंत्री जी इसलिए अच्छे हैं कि इस जनप्रिय बजट में हम आपके परिश्रम को पहचान लेते हैं। अमृतकाल का यह बजट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कठोर परिश्रम, अनुशासित जीवन शैली, दृढ़ इरादों का
संकल्पों को पूर्णता तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति का, गरीबी से मुक्त हो सके ऐसे प्रयासी भारत का, दुनिया को दिशा दे सके ऐसे प्रभावी भारत का, आर्थिक रूप से सबल भारत का, सामरिक रूप से साहसिक भारत का, सांस्कृतिक रूप से मार्ग प्रशस्त करते ऐसे भारत का, या यूं कहें सब विषयों और सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, ऐसे प्रतिबद्ध भारत का प्रभावी बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित ही भारत के स्वर्णिम काल का यह अमृत संदेश है। इतिहास में यह काल 2014 से आगे का गोल्डन ईरा होगा, स्वर्णिम काल होगा, अमृत काल होगा। हाँ, वो नरेंद्र ही तो होंगे जो समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत परोसने में लगे हैं और स्वयं के हिस्से में मंथन से निकला विष गले से लगाया है। मंथन से निकली अन्न, फल, फूल आपकी थाली तक व तिरस्कृत वनस्पति स्वयं के सर लगाया है। समाज की असमरसता का नाग गले लगाकर समरसता का भाव फैलाया है। तभी तो अमृत काल आया है, अमृत बजट आया है। अमृत काल की बेला में G20 की अध्यक्षता आई है। घर में खुशियां लाई है, मंगल गीत हैं, हाथों में मेहंदी रची है और द्वार पर रंगोली है। स्वागत के ताशे बज रहे हैं। देश 2047 के सुखद भारत बनाने में आपके बजट के साये में संकल्पित खड़ा है। युवा पढ़कर रोजगार दे सके ऐसा बनने में अड़ा है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुटीर उद्योगों के प्रेरक श्रृंखला लिए खड़ी है। स्वास्थ्य सुधार के बड़े अभियान हैं तो आधुनिक भारत के निर्माण की दृढ़ संकल्पना है। माननीय सभापति जी, निश्चित ही भारत बदल रहा है। तभी तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI कहता है भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी कहता है कि भारत अति गरीबी से मुक्ति के द्वार पर है। माननीय, गरीबी से मुक्ति मिले इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ से अधिक आबादी को निशुल्क राशन मिले ऐसा सुदृढ़ प्रबंधन किया है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने 2,05,764 करोड़ का विशाल प्रबंधन किया है। जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस चूल्हा, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा बैंकिंग, स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह बजटीय ताकत बनी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास, स्वामित्व योजना, अनगिनत योजनाएं। माननीय सभापति जी, मैं एक संदेश जो मेरे संसदीय क्षेत्र के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र दिया था, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। पुरस्कृत करने का अवसर था 5,000 परिवारों के बीच देश की बजटीय धारणाओं से निकली योजनाओं को घरों तक पहुंचाना। उसमें से एक वाकया है। एक अम्मा है जिनकी उम्र 80 साल है। जन्म आजादी के पहले हुआ। जन्म की खनक बाल मन में कानों में थी कि देश आजाद हुआ है। 5-6 वर्ष की उम्र में यह खनक उनके कानों तक पहुंची कि मैं आजादी में सांस ले पा रही हूं। बड़ी हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, दादी बनी। बुढ़ापे का एक ऐसा दौर आया, तब तक घर के ऊपर कोई आश्रय छत नहीं थी। जब भारत सरकार के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ उस अम्मा के निवास पर गए तो वो खुश थी क्योंकि प्रधानमंत्री आवास उन्हें मिला था। शाम का समय था। अधिकारियों ने पूछा, अम्मा कैसा लग रहा है? अम्मा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि जीवन के प्रारंभ में आजादी देखी थी, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे को पक्का मकान मिला है। आप चाय पिएंगे क्या? अधिकारियों ने उस अम्मा का चाय पीने का आग्रह स्वीकार किया। बैंक की योजनाओं से उनका बेटा जीवन में पहली बार अपनी बकरी हो सके लेकर आए थे। बकरी का दूध निकाला, घर के अंदर गए, उज्ज्वला गैस के चूल्हे पर और चाय बनाई। शाम का समय था, अंधेरा ढला, उजाला योजना का बल्ब जलाया, तब उस घर में पहली बार आजादी आई। ये संदेश है माननीय सभापति जी बजट की योजनाओं का। आजादी की चमक प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में
बजट की खनक कैसे 80 वर्षीय अम्मा के घर तक आती है, ये शायद बिना मकसद यात्रा करने वाले यात्री के समझ से बाहर है, या यूं कहें बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता न लिखा हो, वो कहीं नहीं पहुंच सकता है। ये भटका हुआ यात्री एक बार मेरे संसदीय क्षेत्र में आ गए, मंदसौर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था माननीय सभापति जी, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान जी के कठोर परिश्रम से, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों के सतत लगन से मध्य प्रदेश में दृश्य बदला है। लेकिन इस भटके हुए यात्री को कुछ पता नहीं था। मकसद विहीन यात्रा जहर, भ्रम, झूठ, निर्लज्जता की हद तक बोले। माननीय सभापति जी, परिणाम क्या हुआ? अनगिनत संस्थाओं में आग लगी, सैकड़ों गरीब किसानों के वाहन जला दिए गए, मजदूरों के बेटों ने बैंकों से कर्ज लेकर ट्रकों और वाहनों को खरीदा था, महोदय आग के हवाले। परिणाम गोली चालन, लोगों की मौत, भयानक बर्बादी। मकसद विहीन यात्रा को जनता ने निरस्त कर दिया, क्षेत्र ने अस्वीकार कर दिया। माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के निकट राजस्थान का चित्तौड़ है, वहां पर माता रानी है, एक भंवर माता। अब भंवर यानी मधुमक्खी, हनी बी। वो माता है जो भंवर की पूजा आराधना होती है। ये भटके हुए यात्री जब उधर आए थे, मकसद गलत लेकर आने वाले के ऊपर मनुष्य तो क्या देवता भी कैसा प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं, ये रिकॉर्ड पर है। 1 लाख से अधिक भंवर इस भटके हुए यात्री के ऊपर घिरे, पटरी पटरी दौड़े। ये दौड़ते हुए का दृश्य भी है, रिकॉर्ड पर भी है। ये भटकाव, ये छलाव दुनिया को क्या छल सकता है, ईश्वर भी जानता है। पापों का घड़ा भर जाता है। माननीय सभापति जी, अभी मैं सुन रहा था तो 2-3 राज्यों के विषय में, हालांकि मेरा कमेंट्स करने का उद्देश्य नहीं, मगर 2 वरिष्ठ जन बोल रहे थे, एक बंगाल से थे, एक बिहार से थे। अब बंगाल और बिहार की व्यथा, वो कहानी उन्होंने सुनाई, बड़ी दर्द भरी थी। ये परिलक्षित हो रहा था कि वो दोनों सांसद साथी उन सरकारों से बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें राशि नहीं मिली, उन्हें बजट नहीं मिला। तब मैंने रिकॉर्ड उठाकर देखा तो इस बजटीय संरचना में केंद्रीय कर और शुल्कों से बिहार को 1,02,737 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय कर और शुल्कों के हिस्से की बिहार को जानी है, और 76,843 करोड़ रुपए की विशाल राशि बंगाल को जानी है। मेरे मध्य प्रदेश को 80,183 करोड़ की राशि मिलनी है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस राशि के साथ साथ अपने परिश्रम से उस प्रदेश को सुदृढ़ करने के लिए अभी तो बहनों को लाडली बना रहे हैं। हमने बेटियों को लाडली बनाया है, हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, हम शिकायत लेकर नहीं आए। ये बात इस समस्या को इंगित करती है। इन दोनों सांसद भाइयों का बंगाल और बिहार में अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, जो 80 करोड़ लोगों को राशन, जो गैस का चूल्हा, जो पक्के मकान, और इतनी बड़ी बड़ी राशि 1,02,000 करोड़ की विशाल राशि का उपयोग नहीं कर पाए, इन्होंने सिद्ध कर दिया। इसलिए मैं तो जनता से यही आग्रह करूंगा कि दोनों भाइयों का स्वागत करें कि अपनी अपनी सरकार की पोल खोल कर चले गए। पापों का घड़ा भरता नहीं है। योजनाएं आती है, नीचे कैसे दुरुपयोग होता है, और कैसे भोली भाली जनता को ऐसे तेज तेज भाषण देकर लोग चले जाते हैं। मैं पिछले बार गलती से कह दें या जनता के भ्रम से कह दें, मेरे मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, कमलनाथ उसके प्रमुख हो गए। वादे क्या किए थे? यही यात्री थे। इन यात्री ने क्या वादा किया था? इन्होंने कहा था कि 1, 2, 3, 10 तक गिनना, तब तक सारा कर्जा माफ। भाई साहब वो आज भी खड़े हैं, और क्या बोले, हर खेत के पास में प्रोसेस प्लांट लगा दूंगा। ये रिकॉर्ड पर है, हर खेत के पास प्रोसेस प्लांट लगा देंगे ताकि आपका और खेती का उत्पादन सीधा पैक हो जाए। हर गांव में एक मोबाइल का फैक्ट्री होगा अपने गांव के नाम से, मेड इन इंडिया। ऐसा अपना गांव हमारा वहां पिपलिया मंडी था, बोले मेड इन पिपलिया मंडी, मेड इन मंदसौर, मेड इन नीमच बना दूंगा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, अभी ढूंढ रहे हैं, इस चुनाव में ढूंढ लेंगे वो। सामाजिक पेंशन 3 गुनी कर दूंगा। बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए दे दूंगा। दूध पर 5 रुपए का बोनस दूंगा।
सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन बहनों को बड़ी मुश्किल से गांव में लोग एकत्रित करके और रोजगार के लिए जुटाते हैं। उन बहनों से कहा तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। 60 वर्ष से बड़े पत्रकार भाइयों को कहा तुम्हें सहायता देंगे। सफाई कर्मचारियों से कहा तुम्हें नियमित करूंगा। नेताओं से कहा एक विधान परिषद बना दूंगा। बेघरों से कहा कि तुम्हें 2.5 लाख रुपए अतिरिक्त दूंगा। और लड़कियों से कहा कि 2 पहिए के वाहन दूंगा। ये पोस्टर लगे हैं, ये घोषणा पत्र है। वो सरकार बन गई थी, वो सरकार रही, वो तो बाद में सिंधिया साहब को समझ में आ गया कि ये भटका हुआ यात्री है, इसलिए सरकार वापिस शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में है। क्या करें माननीय सभापति जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। आंकड़े ले आते हैं, परसेंटेज बताते हैं। गांव का व्यक्ति परसेंटेज में बात नहीं करता हो तो उसे पता पड़ना चाहिए कि मुझे मिला क्या है। नेहरू की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। मैंने भी सोचा कि नेहरू जी ने कुछ तो किया होगा। मैं जब कमेटियों में गया तो मुझे समझने का मौका मिला कि कृषि पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना अनाउंस की थी, लेकिन अनाउंस करते ही बड़े बांध लाए। लेकिन माननीय सभापति जी, 30 साल से अधिक ब्रिटिश इंडिया ने बड़े बांधों को बनाने के लिए मैपिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग वर्क, टेक्निकल वर्क अपडेट करके महामहिम के हाथ में दिया था। लेकिन उस दौर में जितनी योजनाएं थी उसमें सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी की छाया छत्र भी थी, बाबू जगजीवन राम जैसा विशाल हृदय का व्यक्तित्व भी था, राम मनोहर लोहिया जी का पीछे से कांग्रेस को दी पृष्ठभूमि भी थी। इन सब चीजों को लेकर बातें तो बहुत कर ली। और अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की 51 से 56, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, आप पहले भी कह रहे थे, आज यात्री फिर भटक कर कह रहे हैं। 56 से 61 तक समाजवादी समाज की रचना, बहुत बढ़िया। 61 से 66 तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। 66-67 में मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग और भारत के स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति पर काम किया था। 67-68, 68-69 और 69-70 में बोले स्थायित्व के साथ विकास। और 71 में गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। हम मनोज कुमार भी प्रभावित हो गए माननीय सभापति जी। उन्होंने एक पिक्चर बना लिया, रोटी कपड़ा और मकान। अरे बड़ा सबको लगा कि भाई और क्या चाहिए, रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, छप्पर फाड़ कर वोट दे दिया। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 80-85 में गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि की बातें आपने इस सदन में कही, दुनिया के सामने कही। 85-90 में उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अवसर, और 91 में आर्थिक सुधार, मानव संसाधन विकास पर 92-97 पर माननीय सभापति जी देश को समझ में आया, ये भूल छलावा और भटकावा समझ में आया, तब नीति आयोग सामने आया। और नीति आयोग में थिंक टैंक है, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की बात है। इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं और परिणाम सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड सामने आया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स सामने आया, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक सामने आया, अटल नवाचार मिशन आया, नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप और विश्वसनीय मदद और विशेषज्ञता प्रदान करने की एक रणनीति सामने आई। देश समझ चुका है। माननीय सभापति जी, कितने बजट और कितने पैसे की बात करें, हम स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं। हम स्वास्थ्य पर ही बात कर ले तो आज 86,200 करोड़ का विशाल बजट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहन निर्मला जी ने दिया है। धन्यवाद दूंगा। ये 12-13 में 37,000 करोड़ था। आज से ये परसेंटेज में बताते हैं उलझाने के लिए। ये गरीब आदमी का सिस्टम समझते हैं कि इसे परसेंटेज बता दो, वो एनपीए क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट ये हो गया। अरे छोड़ो भाई, बोर्ड जिससे लाते उसे समझा दो कि तुमने क्या किया। मैं तो एक बात जानता हूं कि यथार्थ कैसे होगा। मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री गुजरात थे, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। जिला अध्यक्ष के रूप में हमने आमंत्रित किया था। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात उस समय आए थे और उन्होंने 2 लाख से अधिक जनता को संबोधित करते हुए कहा था, मैं जानता हूं स्वास्थ्य की सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है और लोग अहमदाबाद चलकर आते हैं, मेरे पास भी आते हैं और यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा सुधरनी चाहिए। आज मैं खड़े हुए फोरम पर कह रहा हूं, आज 14 और 22, मुझे ना आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, मेरे वहां की जनता खुश है।
हम आश्चर्यचकित है कि कैसा स्नेह होता है सरकारों का। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय सभापति जी मेडिकल कॉलेज आए, कितना? मेरे यहाँ 3 जिला मुख्यालय हैं, तीनों जिला मुख्यालय पर 3 मेडिकल कॉलेज, एक बनकर चालू हो गया, एक बनकर चालू हो गया। दोनों इतनी हाइट पर आ गए कि मनसुख भाई यहाँ बैठे हैं, मांडविया जी, मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दूंगा, नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जी थे उनको भी दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद बधाई दूंगा। कमाल कर दिया साहब। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, हम सोच नहीं सकते थे, अभिभूत है हम तो। और 3 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बजट में हमें पता पड़ गया कि नर्सिंग कॉलेज भी आएंगे, कुछ तो मेरे भी दरवाजे आएंगे, इसलिए तीनों में आ जाएंगे और इसीलिए जनता खुश है, प्रसन्न है, अभिभूत है। हम कैसे धन्यवाद दें माननीय सभापति जी? हम जानते हैं कि पोषण अभियानों का परिणाम है एनीमिया मुक्त देश बनाने का परिणाम। अभी राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल आए थे, वो बड़े संवेदनशील हैं। सिकल सेल पर उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया। सिकल सेल जैसी घातक बीमारी आजादी के बाद आज तक दूर ना हो सकी, लेकिन भारत सरकार की संवेदनाएं देखो, आपकी सहृदयता देखो कि सिकल सेल मुक्त भारत बनाने के लिए 2047 का लक्ष्य आपने रख लिया। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं 4 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मारे जाते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय को, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। 2025 भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, इस पर कठोर काम ये देश कर रहा है, इसलिए मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि आज मातृ मृत्यु दर में, बच्चों की मृत्यु दर में और जो गिरावट आ रही थी उसको सुधारने का काम हुआ। कालाजार भारत से मुक्त हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। हम सब जानते हैं, हमने देखा, इन्होंने तो उपहास उड़ाए थे जब पहली आपकी सरकार अटल जी की सरकार में और पल्स पोलियो अभियान रोटरी क्लब और अटल जी की सरकार के संयुक्त सहयोग से देश में आया था। 2 बूंद पोलियो, आज उसका परिणाम क्या है माननीय सभापति जी? 2 बूंद पोलियो पिलाने का परिणाम है भारत में किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी अपनी कोख से अपंग बच्चे को जन्म नहीं देती है। यह हिंदुस्तान बनाने का संकल्प अगर लिया है तो वो बजटीय धारणा में प्रकट होता है। माननीय सभापति जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कैसे उपहास थे। एक दिल्ली में माइक से अनाउंस था, एक मुंबई में टिकटों का प्रलोभन था, बसें लगा रहे हैं, अपने घर भेजेंगे, पता नहीं था, लोगों को सड़कों पर चलने को मजबूर कर दिया। माननीय सभापति जी, इनके भटकाने का परिणाम यह आया कि 8 महीने का पेट में बच्चा लिए माँ, 1.5 महीने का, 1 महीने का हाथ में बच्चा लिए बहन सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर थी। बसें लगाई इन्होंने, सरकारों ने बॉर्डर पर छोड़ दिया उन लोगों को। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी और देश के तमाम ऐसे तमाम लोगों ने और देश में करोड़ों करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाने का प्रबंध किया है। मैं धन्यवाद दूंगा नड्डा साहब को, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को। रात दिन करके उन्होंने प्रदेश भर के अंदर, देश भर के अंदर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, सरकारें खड़ी हुई। हम सब जानते हैं 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन देने का महान अभियान उस समय हम सब के लिए कारगर हुआ और कोई भूख से परेशान न हुआ, ये भारत बनाने के लिए। अब हम तो अपने क्षेत्र की जानते, मेरे तो कई कांग्रेसी मित्र भी हैं, मुझे वोट भी करते हैं। मैं तो यहाँ सार्वजनिक रूप से कहता हूं, उसमें से कई आ भी गए पार्टी में हमारे साथ। स्नेह का ये रिश्ता दुश्मनी में नहीं चलता है, लेकिन उनकी पत्नियों के, उनकी बहनों के टेलीफोन आ रहे थे, हमारे नेता ने कहा ये मोदी वैक्सीन नहीं लगाना। अरे बाप रे, अरे आपका पत्रकार फोटो खींचता है, ये मोदी वैक्सीन लगा लेंगे तो पार्टी हमें निकाल देगी। हमारे बड़े नेता कह रहे हैं ये वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन। मैंने कलेक्टर से बात किया, मैंने कहा बड़ा परेशानी का काम हो गया कलेक्टर साहब, ये भाभियां सब मुझे टेलीफोन करती है, इन नेताओं को वैक्सीन लगाने के लिए क्या करें। हमने एक अभियान चलाया, रोटरी क्लब, लायंस क्लब को हमने ऐसे तमाम क्लबों को कहा कि अपने अपने धर्मशालाओं में आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम ले लो, ताकि हम अपने ऐसे भाइयों को जो फोटोग्राफी से डर रहे हैं वैक्सीन के लिए भेज देंगे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, ऐसे नेताओं की अपील न सुनते हुए तमाम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया। मैं ढूंढकर ऐलान करता हूं कि कोई भाई ऐसा बता दे जो वैक्सीन विरोधी वैक्सीन न लगाया हो, तो कृपा करके मेरे सामने आ जाए।
कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मैं धन्यवाद दूंगा मनसुख भाई को, क्या गजब का मैनेजमेंट था। मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी उस समय के, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, वित्त मंत्री जी को। कमाल का कार्यक्रम साहब, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, देश और दुनिया में उसकी क्या ख्याति हुई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एम्स पर बात करना, मेरा समय है अभी, मैं एम्स पर बात करना चाहता हूं। मैं तो शुरू किया है, मैं एम्स पर बात करता हूं, ये कहते हैं एम्स हम लाए, एम्स हम लाए, एम्स हम लाए। अब मेरा बेटा एक दिन मेरे से बोले, पापा यार एम्स ये कांग्रेस के लोग लाए थे क्या? तो मैंने कहा चलो ढूंढते हैं। तो पता पड़ा एम्स आया था पंजाब की महारानी की बड़ी एक कृपा और योजना से, दिल्ली का एम्स। बात के एम्स क्या हुआ, तो सूची निकाली। अब सूची निकाली तो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। गजब हो गया साहब, ये तो अटल जी ने 2003 में घोषित किए थे। अरे बड़े नाम ले लेके देश भर में घूमते हो। ये बच्चे अब पढ़े लिखे हैं, ये भरोसा नहीं करने वाले हैं, इनके परिवार के लोग ही गायब हो गए। वो बोले पापा ही झूठ बोलने वालों के साथ है। भैया ये तो रिकॉर्ड पर है, 2003 करते करते 12 आ गया। हाँ इन्होंने एक किया, एक रायबरेली, गजब, एक रायबरेली इनके नाम है। मगर साहब देव कृपा ऐसी थी कि पूरा करने का मौका ही इनको नहीं मिला। वो भी 18 में पूरा हम ही ने किया, इनके खाते में लिखा पड़ा कुछ नहीं, लिए कागज घूमते रहते हैं और एक नाम ले लेते नेता का। अरे उस जमाने के कांग्रेस के लोग सरदार पटेल से लेकर बाबू जगजीवन राम तक, कोई तुम्हें लाइक नहीं करता, डिसलाइक हो गए, कोई लाइक नहीं करता, उनकी चीजें गिनाया मत करो। और हम तो एक बात जानते हैं, धन्यवाद तो देंगे माननीय सभापति जी। मैं तो हमारे अधीर रंजन जी के साथ श्रीनगर गया था 15 अगस्त 2021 को, झंडा वंदन था 15 क्रॉप के साथ। गलवान घाटी तक गई थी टीम पूरी, वो भी खुश थे, हम भी खुश थे साहब। ये भारत की सेना। अरे अभी परसेंटेज बता रहे थे लोग, अरे परसेंटेज में कुछ नहीं समझते आंकड़े बताओ। 2,03,000 करोड़ का बजट इनका आखिरी बजट है, जो 2,03,000 करोड़ रुपए सेना को देता था। 10,000 करोड़ की पेंशन के लिए इनका नेता सड़क पर धरने पर था साहब। हम भी पूछते थे ये 10,000 करोड़ की बड़ी राशि 1 रैंक 1 पेंशन के लिए देंगे कैसे? आज बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज लोगों को भटकावे और छलावे में ले जाते हो। आज लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि भारत ने अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करके 2,03,000 करोड़ के बजट को 5,95,000 करोड़ के विशाल बजट पर पहुंचाया। धन्यवाद के स्वर नहीं निकलते। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजनाथ जी को, मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को, और धन्यवाद तो निर्मला सीतारमन जी का भी बनता है, और धन्यवाद मनोहर पर्रिकर जी का भी बनता है। कैसे चुकेंगे साहब, बदल दिया है देश। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूं, सेना तो सेना, हमारे यहाँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय है नीमच, सीआरपीएफ वहीं से बना। अब जब सीआरपीएफ प्रारंभ हुआ, उसका बर्थ प्लेस है, तो उस बर्थ प्लेस के अंदर आप कहते पैसा नहीं आता। मेरे क्षेत्र में कभी पैसा आया नहीं साहब, ब्रिटिशर्स ने बनाया था सीआरपीएफ, खंडर होने को आया था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे सभापति जी, 58 करोड़ रुपए की राशि में 360 आवासीय क्वार्टर बनाए हैं, 28 करोड़ रुपए की राशि में 5 बैरक बनाए हैं। इसमें महिलाओं का बैरक पहली बार आया है, 4 करोड़ का ऑडिटोरियम है और 5 करोड़ के स्विमिंग पूल है। हम तो इतना जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल मेरे सीआरपीएफ में आ गया। और अध्यक्ष जी क्या बात करें, देश तो बहुत बदल गया है। आईएनएस विक्रांत या नौसेना का ध्वज, बच्चों में रोमांच है, वो ध्वज बदलना भूल गए थे, आज बच्चों में रोमांच है कि हमारे ध्वज को स्मरण किया है। राफेल का विषय या ब्रह्मोस मिसाइल की बातें तो मैं करूंगा नहीं। किस तरीके से हम दुनिया को अब बेचने वाले देश हो गए, किस तरीके से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एचएएल ने बनाया है, चिनाकू और अपाचे हमारी सेनाओं में सम्मिलित हैं। मैं उन बातों को नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि निर्यात पर 307 सामग्रियां मैक इन इंडिया, मैक बाय इंडिया, मैक फॉर इंडिया के तर्ज पर भारत में आई है। और माननीय सभापति जी मैं तो इतना भी जानता हूं, गर्व भी करता हूं, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी किए थे। मेरे अपने गांव में भारत सरकार ने एक सैनिक स्कूल दे दिया है, और दूसरा सैनिक स्कूल भी मेरे ही संसदीय क्षेत्र में सीआरपीएफ के नीमच में आने के लिए तैयारी पर खड़ा है। सैनिक स्कूल 2
मेडिकल कॉलेज 3, गजब। एक आ गया सैनिक स्कूल, एक आएगा। हम तो मांग पर खड़े हैं, संभावनाओं पर खड़े हैं। नर्सिंग कॉलेज 3, कितना गिनाएंगे? ये कहां थे इतने सालों से? और इसीलिए हम एक बात जानते हैं कि आज देश गर्व करता है, भारत की सेनाएं बदली बदली है, भारत की सेनाएं गर्व से खड़ी है। माननीय सभापति जी, पीयूष गोयल जी को धन्यवाद न देंगे और अश्विन वैष्णव जी का धन्यवाद न करेंगे, मनोज सिन्हा जी का स्मरण न करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब हम सब लगे थे साहब, पटरी पटरी, पूरा रिकॉर्ड खोजा साहब सभापति जी, सारा अंग्रेजों का लगाया पड़ा पटरी। वो स्टेशन भी वैसे ही बने पड़े, वो स्टेशन भी वैसे, पटरियां भी वही, और लिए डब्बा ये बताते रहे हम लाए। आज मैं गर्व से कहता हूं, माननीय सभापति जी, क्षेत्र का सीना फूला पड़ा है। 400 करोड़ रुपया तो आपने नीमच से रतलाम के दोहरीकरण के लिए मेरे क्षेत्र को दे दिया। 150 करोड़ रुपए आपने नीमच से बड़ी सादड़ी, वो सांसद जी यहां नहीं है, बैठे हैं पीछे, नीमच से बड़ी सादड़ी, अरे साहब 150 करोड़ रुपया, और नीमच से चित्तौड़गढ़ के लिए 50 करोड़, बड़ा गजब है। और पहले पिछले साल दिया वो तो मैं गिना ही नहीं रहा हूं। अभी निर्मला जी का 5वां बजट है, अगर वो गिनाऊंगा तो ये सब कहेंगे टाइम हो गया। अरे मुझे एक बात समझाओ, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया माननीय सभापति जी, हमारे यहाँ के वृद्ध, हमारे यहाँ की महिला बहनें रेल के डब्बे में चढ़ नहीं सकती थी, आखिरी डब्बे में। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी प्लेटफॉर्म अब ऐसा नहीं है जो रेल की लंबाई के बराबर नहीं है। हम गर्व कर सकते हैं। आपने क्या ध्यान दिया महिलाओं पर और वृद्धों पर, क्या ध्यान दिया बच्चों पर? हम गर्व से कह सकते हैं, हम गर्व से कह सकते हैं। हमारे यहाँ एक पहले सांसद, कांग्रेस से सांसद रही है, वो कांग्रेस की सांसद रही है, एक अंडर ब्रिज एक, और माननीय सभापति जी मेरे पास आपने दिए 65 अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज 65। क्या प्रशंसा नहीं करेंगे साहब। अमृत स्टेशनों की झड़ी है, मंदसौर बना दिया अमृत रेलवे स्टेशन, नीमच बना दिया, गरोट और शामगढ़ घोषित हो गया, जावरा और सुवासरा हम डिमांड पर लगाए हुए हैं। माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश को इस बजट में रेलवे में 13,607 करोड़ की विशाल राशि दी है, जो इनके पूरे कार्यकाल में 5 साल में कुल 631 करोड़ रुपए आए थे। आज 13,607 करोड़ की विशाल राशि आई है। माननीय सभापति जी, बात अगर गडकरी जी की ना करेंगे और सड़क की ना करेंगे और धन्यवाद नहीं देंगे तो कैसे रह पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अरे पूरे मेरे संसदीय क्षेत्र का प्राण बन गया है। 4 मार्ग दिए हैं, ये बैठे हैं उज्जैन के सांसद जी, इनको जोड़ दिया उधर से, और हमारे अभी झालावाड़ के सांसद जी को भी उन्होंने हाँ कर दिया है। 6 मार्गों से 6 मार्गों से जोड़ा है अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र को। 1 लाख करोड़ का विशाल सड़क, 1 लाख करोड़ का विशाल सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र को मिला है। धन्यवाद तो देंगे, मगर एक बात कहूंगा, सुदूर ग्राम सड़कें अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र में सुदूर, अरे ये तो भूल जाते ले लेकर, ये सांसद गिनाते नहीं और इनका डब्बा पता नहीं कहां का बजाते रहते हैं। सुदूर ग्राम सड़क 1496 सड़कें, मैं लिस्ट के साथ दे सकता हूं, मैं डायरी साथ में रखता हूं। 1496 सड़कें अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र में बनी है। क्या विकास गिनोगे आप, क्या विकास गिनोगे आप? सीआरएफ मद की सड़कें गिनाएं, पीएमजीएसवाई की 312 सड़कें अकेले। हम हमारी मालवी भाषा में कह सकते हैं, हम नुगरे नहीं हो सकते, लेने के बाद भूल नहीं सकते। कोई हो तो हो, अपने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास में भारत सरकार के इस बजट को गिनाकर नहीं गिनाकर ये अपराध करते हैं। ग्रामीण विकास सड़कें, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, अरे अकेले शांति धाम बने, शांति कपिल धारा के कुएं मेरे जिले में 1864, 1817 नीमच जिले में, जावरा में 1059 कपिल धारा के कुएं लेकर भूल जाओ। अमृत तालाब का तो क्या कहना, 75 पूरे बन गए हैं। और इसीलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा नरेंद्र सिंह तोमर जी को, भाई गजेंद्र शेखावत, प्रहलाद पटेल और गडकरी जी को भी। माननीय सभापति जी, कांग्रेस भी मोदी जी को रोकती है और जनता भी।